एक एग्जांपल देके उसको कंक्लूड करना कि इट इज यूज्ड इन मनी मार्केट फॉर सो एंड सो पर्पस, सो ये इस टाइप का एक इन्वेस्टमेंट है, यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक दैट। जस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स एबल टू हियर मी? हेलो, यस सर। ठीक है, we have about 9 students with us, ठीक है, their batch is completed and they are sharing their feedback and some of the valuable information. Okay, so just stay and then we will start the session. Yeah, last see, basically whenever any question is being asked, you need to first of all make sure what the concepts are. First, follow the IBC structure: definition, explanation and examples. Second, third, you need to make sure your communication skills are not fluent but yes very जो बोलते हैं कि ठीक है हम आराम से एक्सप्लेन तो कर पाते हैं कंसेप्ट्स को, उस टाइप का, ठीक है. His communication skills in the very beginning, even his concept and domain is not that good, but the team working approach of Subok 9 really helped him to score good marks in level 2 and level 3. He's in T1 as of now. हाँ, उसको T3 था. He was in T3 after level 1 and after final marks is in T1. ठीक है, so you can understand the change that he has brought himself. Yeah, you can share. Work together, guys. मतलब एक concept में ground पे भी सीखा, इधर भी बताऊंगा. So I'll explain on the board. मतलब वो तो I did it. T means together. E means each one achieves more. Together, each one achieves more. Basically ये याद रखना. Work in a team. Communicate करो. Call करो. I used to call him at night. 10, 11, 12 कि मेरे को समझा, सिखा मेरे को. So I used to do that. तो इसने सिखाया मेरे को. And I used to explain. I started explaining them. Guys, actually आप लोगों को connect करके रहना होगा कि मतलब कैसे group discussion करो, रात में थोड़ा group form करो या मतलब कोई term sir सिखा रहे हैं एक chapter को उसको discuss करो रात में कॉल पे. ऐसा Competition is a good thing. Healthy competition रखो, एक दूसरे को uplift करते हुए चलो. You'll all will get selected. तो easy है, कुछ ये tough नहीं है. Start talking, start exploring. मैं खुद से explore भी करो. सर सिखा रहे हैं, it's okay, but explore more. जितना नहीं समझते उतनी बार सर से पूछो. And sir is always going to explain for sure. Yeah, any other queries that you want to ask or any other things that you want to share? मतलब इनको अगर कुछ भी पूछना है तो. all these guys are working or like No, they are not working. Interviewing as of हाँ, now. ये इनका तो अभी M.Com जस्ट खत्म हुआ, ठीक है, एक साइड जॉब का एक्सा का उनका ऑफर लेटर भी आ गया और उनका दूसरी राउंड M.Com का एग्जाम चल रहा है. today was my final exam of it. हाँ, वो एग्जाम खत्म करके वैसे तो फर्स्ट मॉक में मतलब नर्वस फील हुआ कि कैसे पहले कभी इंटरव्यू दिया नहीं है, सो ऐसे नर्वस फील हुआ कि फर्स्ट मॉक. Don't be nervous. Concepts अगर clear है ना तो तुमको हाँ फिर क्यों nervous है फिर? Like you'll know. मेरा फर्स्ट मॉक था एंड सेकंड क्वेश्चन if I'm not wrong, सेकंड क्वेश्चन सर ने मुझे कुछ पूछा और मुझे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा 50-50 था. मेरे पैर शेक होने चले गए मतलब कि मैं क्या बोलूंगा. वो पार्ट में अगर आप नर्वस हो गए then you are ruining your all the questions which are coming. एक क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा, सेकंड क्वेश्चन तुमको 50-50, लेकिन जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में तुम्हारे अच्छा, they are still completed, so they will be going into the pool. उसके बाद once they get the placements, I will inform you. So why you don't lose your confidence in the middle of. Yeah, one more thing. How many rounds of interview were there for AXA? 9 rounds. 9 rounds. नहीं. On a span of 15 to 20 days. Yeah. And अभी तो mocks है, सर ही ले रहे हैं, सर. And yeah, most important part of this, the two people that have selected, the company got confused itself कि किसको select करना है. इसको करें उसको करें. हाँ, So ठीक है. Final round, I and my friend is there, Vishwesh. We both went to the final round, and both of us were not rejected. But firstly they gave me the role, and then they provided Vishwesh the role, and after a week. Yeah. So after 1 week, Vishwesh also got selected in the same company. क्या हुआ? But Sir told about that they don't have opening and for that. Correct, हाँ. But at the end of the day ऐसा हुआ कि दोनों को फिर placement मिल गया. And दोनों बस साथ में गए थे इंटरव्यू. कोई सीरियस नहीं था. आप बोले थे. After first time I was not at all serious that I am going for an interview. But one thing, when I went there, like 3.5 के package के लिए 80 people were there. Yes. For the interview. Competition is huge. So after seeing 80 people, मुझे लगा मेरा थोड़ी होगा.
फिर उसके बाद then मतलब कि I have that thing that competitiveness is there inside. So we started competing in a healthy way. Vishesh helped me in many ways and I helped Vishesh in other ways. So keep bond between all the like members of the batch. Grow मतलब उगो तो एक साथ ये चीज. Yeah. Any other queries? What was asking 9 level? Like, Ninth round. Ninth round. In the ninth round, Mr. Pradeep was there as an interviewer. So he told me one thing that you are from Imatica, so I won't ask you any technical question. So it was my final round, and in the final round he asked me from where do you belong, where parents stay, and will they come to Pune? This was the only thing they have asked because Pradeep sir interviewed me in the third round as well and in the sixth round as well. So he knew that I have the basic domain knowledge. And in the ninth round, he was actually surprised that I'm again and again giving positive feedback about this guy and how he's coming in the interview process again. What is the role or Roles and responsibilities. For which what is the designation? Like what is the designation? So it's analyst client servicing. So they ask you about the role also, what you have studied about the job description. Do you know anything about In the third level, you will come across trade life cycle. So there is a concept of trade life cycle. So they basically ask if you have an analyst role or a middle office role. So they'll ask about the trade life cycle. That what do you know about the responsibilities and all being a part of a trade life cycle. Basically, you just need to study the job description as well, and इसमें जो भी concepts होंगे just read through it nicely and then go for the interview. Definitely, they're going to ask about the job description as well. इसका भी एक इंटरव्यू हुआ था टॉस तो इसने पढ़ा नहीं था तो इसको पूछा have you तूने पढ़ा है क्या Like even नहीं if you पढ़ा miss तो a पढ़ point, they'll call you out on it. Like, Then, have you read the job description yeah. like nicely or not? So of course, you need to be very thorough about the job description. Yes. And if you don't know, just ask sir. He'll explain you whatever the roles will be. Just keep your concepts clear. Easy उसके बाद नहीं ये लगेगा. options वगैरह के direct questions थे. मतलब if I'm talking only of level 1, तो he was directly asked questions, domain knowledge पूरा test किया गया. ठीक है? Call spread, call put सब कुछ आ गया था. ये they'll not go chapter wise. हाँ, of course. उनको तो मालूम है कि क्या है वैसे ही. और वो examples इनको ही देने पड़ते हैं. Mocks बहुत hard लेते हैं. बहुत easy लेते हैं. अब तुम्हारी preparation के ऊपर है फिर. डिपेंड करता है कौन दे रहा है नहीं level 1, level 2, level 3 mocks. Level mocks were tough level 3 mocks were very tough आपका लेवल 1 तो बहुत बेसिक होगा उसके बाद लेवल 2 उसके बाद लेवल ऐसा लेवल इंक्रीज होता है. If you want that your level 3 mock should be like really awesome, just have all the practical knowledge about it. Whatever sir is teaching now, practical implications अभी से चालू कर दो. Level 3 भी आया है, then you will be able to crack it very easily. और क्या चल रहा है मार्केट में अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सबको आइडिया चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है ओवरऑल क्या चल रहा है कंपनीज में क्या चल रहा है थोड़ा सा आइडिया पूरा नहीं थोड़ा आइडिया चाहिए बस ज्यादा कुछ नहीं और प्रैक्टिकली जब सर सिखाते हैं वो बुक्स मतलब बुक्स में भी है और वो अप्लाई करो बस बाकी कुछ नहीं है इज नथिंग. And one thing what we are doing wrong here that we are speaking in Hindi, don't speak in Yes. any of the interview. any of the mock. Yes. Any advice you want to give us before level 1 mocks? लेवल तो नहीं इजी है तो वैसे नहीं बट So you would have given the level 3 mocks also, na? That's why maybe you are feeling it is easy. But see, there is one difference over here. Whenever they were giving level 1 mocks, तो उनका भी ऐसे ही मतलब वो उस टाइम पे रहा होगा. अभी इजी लगता है लेकिन लेवल 1 जब देने आए थे तो वही बोला ना इसलिए नेक्स्ट बार शेकिंग इन द लेवल 1. हां तो लेवल 3 में तो और हालत खराब हुआ था. ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ है. ठीक है तो लेवल 3 वाज लाइक वेरी हेल सिचुएशन इन अनदर वर्ड्स. सर मेरा लेवल 1 में देखा Level 2 and 3 is like theory, and level 1 is conceptual based. So if level 1 is clear concept wise, then you will easily crack it. Because level 3 anyways you have to like go through the theory and understand and read it and like mug it somewhere. But level 1 is all about concepts. And level 3 is yes.
मतलब I started bombarding questions which was Out of our syllabus. out of the entire syllabus of SIPO. Yes. Okay. You can expect the level. वो question is going वाला. हाँ, Boeing. वो तो HR question था. Okay. Yeah, one question was asked. Huh? One question. Add me on LinkedIn, okay? ठीक है. Like I'm growing, making my connections. Like I want to grow my connections, so add me on LinkedIn. उनका आएगा LinkedIn वाला session. हाँ. तो सर बताएंगे. वो कौशल से बताएंगे rather. ठीक है. हाँ. So HR questions are also sometimes very difficult. इतना easy वो भी नहीं होता है. What was the question for it? The question was, how many golf balls you can fit in a Boeing 747? Exactly, I was there. I was in the exact same situation. I was like, sir, what is Boeing 747? I didn't know, so I asked him directly. It is a plane. Yeah, so exactly. I didn't know that at that point of time. So I had no answer for Anyone that. knowing recent news about this particular plane? An investor has a airline. Rajan वाला ना. And the first plane got launched in last 2 weeks. What is the name of the company? Akasha है. Akash yes Akash. ये लोग आप लोग ट्रैक नहीं कर रहे. दिख रहा है पेज पे. ठीक है. पता भी नहीं है कैसी कोई एयरलाइन आ रही है. Money control download कर अरे सर ने किया हुआ है सब तुम कुछ लोगों किया हुआ है, को- but they are not actually getting that level. This is why I actually wanted you to interact with these people. Just understand how they were preparing, how they have escalated their levels. You will understand what is the level of competition in the external world. Competition मतलब एक बार इंटरव्यू में जाओगे, ये 2 लोग तो यहीं से है, for example, बाकी 80 और बैठे हैं. Now imagine whether you are going to crack the interview or not. That is the major thing. Because even in interview, if you like mug up your answers and give me, they'll be like, don't give me this answer, don't give me like proper theory tomorrow. Just give me an answer in a layman terms, then I'll know what And you in know. that 80 people, I was a fresher. And there were many candidates who were having experience in retail banking more than 7 years. Yes. It's tough. It's tough. That's what it about. And it depends upon luck also. Like Vishwesh got the second interviewer was very weak. Like he had some fight or I don't know. Like he was like, don't laugh, sit in a proper way. Like he was not doing anything, still he was being poked again and again. ये सब चीजें आपकी पेशेंस टेस्ट करती है. One thing. Second check क्या करता है? It breaks your confidence. Once you get down your confidence at a very ground level, ना, then it's very difficult to answer any questions. ठीक है. मैंने इन लोगों के साथ level 3 में वही किया. So level 2 mocks भी external faculty आई थी. Same. So they grilled everyone. Level 2 तो मतलब आपका भी टेस्ट होगा. That idea actually I am now implementing across the batches. So सही है ना पर. हाँ. Everyone is अच्छा. expert. Everyone should get that particular Like level. it gets you out of the comfort zone. Yeah, Of course, of exactly. course, yeah. So you Level- you're implementing this in level But yeah, CBOK 10 today is giving, so they are having that test. Physical start होगा 4 बजे से. But हाँ, वो वही चीज है कि आप कितना challenging situation को face कर सकते हैं. If you are very much prepared with your level 2, of course it is going to be easy. अगर आपका preparation ही इतना नहीं है, then how can you expect to interview आपका easy जाएगा? It's very clear. Even if you don't know the answer, be confident about it. Answer the next question confidently. Cover up हो जाएगा. वो moral down मत कर. guys, we are future investor backer. We can't lose our confidence. One good with maths. Good with Yes. maths. You have to be good with maths. जो आपको नहीं मतलब मैं तो be good with maths. That's it. Match आएगा थोड़ा. ठीक है guys. Okay. Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yeah. See you. नहीं कोई नहीं बोल
लेवल 1 जितना अच्छी तरीके से करोगे प्लस इंटरव्यू में अच्छा रहेगा। लेवल 2 इज नॉट वेरी ठीक है, मतलब समझ में आ गया तो फिर भी ठीक है, बट दिस लेवल 1 अगर क्लियर नहीं है तो फिर डिफिकल्ट टू क्रैक दैट एनी इंटरव्यू वाला। Start. Online students able to hear me? Hello? Hello? स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर्विसेबल, ठीक है। दिख रहा है ना सबको? ओके ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द निफ्टी बैंक ट्रेडिंग स्पॉट प्राइस? से लेफ्ट साइड चार्ट्स तो ठीक है, लेफ्ट साइड प्राइसेस आएंगी सब। कितना चल रहा है अभी? 35,600 600 राउंड ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर द कॉल ऑप्शंस, ठीक है। उसमें इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, सिमिलरली फिर उसके बाद पुट, ठीक है। मुझे फिर ये बताना कि कौन सा इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ मनी है। Okay, now tell me which one is the in the money, at the money, out of money? मैंने 3 स्ट्राइक प्राइसेस लिखी है, if everyone can just check कौन सी इन द मनी है, एट द मनी और आउट ऑफ मनी है। 3550 is the income. 3550 in the at the money and 35800 out. 5,800 बेटर, हाँ तो ठीक है चलो। सीई इज फॉर कॉल ऑप्शंस और ऐसे पीई आएगा तो पुट ऑप्शंस, ठीक है। तो 35200 इज योर in the money, 35500 approximately at the money and 35800 is your out of money। तो इसमें से कौन सी एक्सपायरी, कौन से ऑप्शन की वैल्यू 0 हो सकती है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो कौन सा हुआ? 800 35800, राइट। तो यू कैन सी ऑलरेडी अभी उसकी 21 रुपए की प्राइस चल रही है, जैसे ही 3:30 बजेंगे उसकी प्राइस 0 हो जाएगी। वी विल चेक इट टुडे, ठीक है। इफ यू सी इन द मनी ऑप्शन 380 के आसपास चल रहा है, वो 0 नहीं होगा, इट इज इन द मनी राइट नाउ, ठीक है। अभी भी एक एक्सपायरी का, वी विल सी कि एक्सपायरी कैसे काम करती है। ऑप्शंस, ऑल द आउट ऑफ मनी ऑप्शंस विल टर्न 0, ऑल द एट द मनी जो भी ऑप्शंस है दे विल बी लूजिंग देयर टाइम वैल्यू, दे विल बी ओनली होल्डिंग देयर इंट्रिंसिक व्हिच इज आल्सो 0। तो इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू दोनों 0 है, तो ऑन एन एवरेज ये 134 भी अगर चल रहा है तो एक्चुअली होना कितना चाहिए था? इंट्रिंसिक वैल्यू तो 76 रुपीज ही है। इफ यू कैन कंपेयर, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 120 है अप्रोक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 35,565, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी की प्राइस क्या चल रही है? 150। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो कितना हुआ? सिर्फ 60-70 रुपीज ही हुआ ना। आई नीड टू टेक द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, करेक्ट। तो बाकी सब टाइम वैल्यू है, ऊपर का 40-50 रुपए, तो 2 घंटे में वो 0 होना चाहिए। क्लियर? So हाँ in the money का जो प्राइस है लाइक 377 हाँ, तो 35,200 है, 35,200 है। और स्ट्राइक क्या चल, स्पॉट क्या चल रहा है? 35,550। तो कितना डिस्टेंस हुआ? 350 पॉइंट। अभी भी उसमें कितना 20-30 पॉइंट टाइम वैल्यू है।
350 और ये चल रहा है 380, Yes. ठीक है। इट विल कम्प्लीटली गेट एडजस्ट, वो फिर तो ऊपर नीचे के हिसाब से चलेगा थोड़ा। अगर नीचे और चला गया 35,500 के नीचे, तो फिर ऑल द पुट राइटर्स विल बी ट्रैप्ड। हमने ओपन इंटरेस्ट देखा था कि नहीं देखा था? एक सेकेंड, ओपन इंटरेस्ट नहीं देखा था क्या? देखा है शायद, ये देखा है ना, ये देखा है चार्ट, ये वाला, दिस वन देखा है? हाँ, तो ओपन इंटरेस्ट आप भूल गए हो फिर। सी मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है? 36,000 पे है। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर एज ऑफ नाउ? 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। कैन यू सी कॉल OI चेंज लिखा हुआ है ऊपर 60 लाख, और पुट कितना बचा है? सिर्फ 5,35,000। दैट मींस योर 36,000 कॉल ऑप्शन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी जीरो। अभी भी 2 घंटे, तो वी विल चेक कि 36,000 का जो कॉल ऑप्शन है, 2 जून की एक्सपायरी है आज की, मंथली नहीं है, ये मंथली वाला है ऊपर। 2 जून, 9 जून, 16 जून, 23 जून एंड योर मंथली एक्सपायरी। सो 5 एक्सपायरीज आर देयर इन दिस मंथ, राइट? 5 गुरुवार आ रहे हैं इसलिए, करेक्ट? तो वी विल सी द प्राइस ऑफ 36,000 कॉल ऑप्शन कितना चल रहा है। सी ओनली 6 रुपए बचा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इसको मैंने अभी बेच दिया तो 25 into 6 कितना, 150 रुपए मिलेगा मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट। जीरो ही जा सकता है, तो 6 रुपए बचा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सेलर्स कैन इजीली मेक द प्रॉफिट बाय बाइंग मल्टीपल लॉट्स। मतलब अगर मान लो अगर मैंने 1000 क्वांटिटी सेल कर दिया तो 6 रुपए के हिसाब से आराम से मेरे तो 6,000 रुपए बन गए ना। क्लियर? और टाइम भी कितना बचा है? 2 तो बच गए, 2:10 इट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। हाँ, तो मतलब या मैं छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ना वो इतना मजा नहीं आएगा, चार्ट देखने का भी एक अलग रहेगा, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, कॉल ऑप्शंस। ओके, नाउ लेट्स सिमिलरली गो फॉर पुट ऑप्शंस, ठीक है? ओके, कौन सा इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी है? पुट ऑप्शन। PE इज अ पुट ऑप्शन। 3520 out the money. 35 at the money is 35 इन द मनी, करेक्ट? इतना समझ में आ गया अभी? नाउ यू कैन सी 35,200 आउट ऑफ मनी है, तो 7 रुपए ही बचे। 1 घंटे में वैल्यू 0 हो जाएगा उसका, हायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है? 35,500 का कितना बचा है? 50 रुपए। इट इज नियरली ट्रेडिंग एट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑफ नाउ। 10 रुपए इधर उधर है, 10-20 रुपए। एंड 35,800 कितना चल रहा है? 250 रुपीज। तो कितना है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू? इफ वी काउंट एग्जैक्टली इट इज ट्रेडिंग एट इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई टाइम वैल्यू नहीं है उसमें। 35,550, if I add 250 in that, it comes to 35,800, करेक्ट? तो कितना बचा है? इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचा है उसमें। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहेगा डिपेंडिंग कि कैसे अभी मूवमेंट्स आती है मार्केट्स में, लेकिन हमको फिर क्या चेक करना पड़ता है कि कौन सा अभी स्टॉक चल रहा है। इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट्स ऑफ द बैंक निफ्टीज, हमारे पास कौन से थे? हमने वो देखा था ना पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ से वो देखते हैं। सिर्फ निफ्टी अगर देखते हैं तो निफ्टी का क्या हाल चल रहा है वो देखते हैं पहले। अरे बाप रे, रिलायंस का क्या सीन है आज? 4% रिलायंस ही बचा का हुआ है, मतलब अकेले वो निफ्टी को खींच रहा है। सी निफ्टी इज पॉजिटिव एंड बैंक निफ्टी इज नेगेटिव। कैन यू चेक? निफ्टी यहाँ पे देखो पॉजिटिव है एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी नेगेटिव है, लेकिन वो किसकी वजह से? सिर्फ अकेला रिलायंस ही खींच रहा है पूरे निफ्टी में। व्हाई अदर्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग? ऑन टॉप ऑफ दैट HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ऑल आर नेगेटिव, ठीक है? यहाँ पे टाटा मोटर्स काफी गिरा हुआ है, सिर्फ बजाज फिनसर्व थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। स्टील सेक्टर इज सपोर्टिंग, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, HCL टेक थोड़े बहुत इधर उधर सब है। बट इफ यू गो टू बैंक निफ्टी स्टॉक्स, एक्सेप्ट फॉर फेडरल बैंक एंड इंडसइंड बैंक, एवरीवन इज इन रेड, ठीक है? तो बैलेंस करके रखा हुआ है। सो इफ यू नीड टू हैव एनी गुड मूवमेंट्स, HDFC बैंक को पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड ICICI बैंक को, तब जाके निफ्टी बैंक में वो पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मुझे हेजिंग वाला स्ट्रेटेजी क्रिएट करना है, 1 घंटा बचा है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज 35,500 कॉल ऑप्शन, ठीक है? अभी लाइव मार्केट में लिखते ही है 35,500 का पुट ऑप्शंस, ठीक है? और आई विल बी गोइंग फॉर 300 पॉइंट्स पर कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे लिखते हैं 35,200 पुट ऑप्शन, ठीक है? नाउ राइट वन थिंग, बुक में ही लिखो 35,500 कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों की जो भी प्राइसेस आ रही है मैं लिखवा देता हूँ। चलो, मतलब
वरना वो फ्लक्चुएशन है तो वो दिखेगा नहीं। 35,500 कॉल ऑप्शन राइट 130 रुपीज एंड 35,500 पुट ऑप्शन राइट 50 रुपीज 50 रुपीज, ठीक है। उसका 130, इसका 50। 35,800 कॉल ऑप्शन 20 रुपीज 800 कॉल ऑप्शन 20 रुपीज एंड 35,200 पुट ऑप्शन 8 रुपीज, ठीक है। अगर मुझे हेज करके खेलना है कि भाई 1 घंटा बचा है, आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ अ रिस्क, ठीक है, व्हाट कैन आई डू? अब मैं स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करता हूँ ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा मार्केट का आइडिया आएगा। हेज है तो लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस, हेजिंग है तो डेफिनेटली लिमिटेड ही होगा सब कुछ। अगर आप सिंगल डायरेक्शन खेल रहे हो, लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, यस यस, अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस वो भी। हाँ ठीक है, वो 0-0 निकल गया है क्योंकि टाइम निकल गया है, बट एनीवेज ठीक है, देखते हैं। 0-0 क्या होता है? जो 0 होने वाला था, मतलब 2-3 रुपए बचा है, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा कुछ मार्केट में होता है कि वो 200 रुपए तक चले जाता है। तो समटाइम्स इवन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 रुपीज एट 2 PM विल गिव यू, मतलब 1,000 क्वांटिटी खरीदा है, 2 रुपए चल रहा था, 2,000 रुपए का रिस्क लिया मैंने 2 बजे को, ठीक है, 200 रुपए चला गया, 200 into 1,000 विल बी 2 lakhs, डायरेक्टली 2,000 का 2 लाख 1 घंटे में बन जाता है। बट दैट इज 1 in a 10 times मार्केट सिनेरियो। 10 एक्सपायरी आते हैं कभी कभी, उसमें एक बार ये मौका मिलता है, ठीक है। 36 35, अच्छा ये 38 जून है, वही मैं देख रहा हूँ ना। प्रीमियम कैसा आ गया वही मैं सोच रहा था। सेलिंग ओके, उसका भी चेंज नहीं किया होगा आई थिंक सो। हाँ, एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में थोड़ा बेटर आइडिया आ रहा है अभी compared to what we were writing and dealing. Expiry 2nd June है। Now to hedge this, now see if you can check over here, अनलिमिटेड लॉस है एज ऑफ नाउ। व्हाई? अगर कॉल बहुत भाग गया या पुट बहुत भाग गया ऑप्शन प्राइसिंग में, आइदर ऑफ द केसेस, तो मेरा अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो इफ यू कैन चेक, मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 4,400 ही है, लेकिन लॉस इज अनडिफाइंड, ठीक है, दोनों साइड की, मतलब देयर इज अ स्लोप। नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस स्लोप इनटू हेज, मैं क्या करूंगा? आई विल बी बाइंग 35,800 कॉल ऑप्शन, and similarly put option के साइड में भी मुझे hedge करना है। I will be buying one put option. See, अभी limited profit limited loss हो गया। Maximum profit can be 3,749, maximum loss can be 3,751, 1:1 का रेशियो, और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, सिर्फ 46,000 चाहिए। लेकिन if I talk in terms of returns, 8% I can gain just now in 1 hour। 1 घंटे में ही मेरे 8% आराम से बन जाएंगे। मतलब 10% कितना होता है? 4,500 ना, ठीक है। तो ठीक है, मतलब 8% एक दिन में मुझे मिल रहा है, तो क्या गलत है? पूरे साल में एफडी नहीं दे पा रही है, और वो भी कितना इन्वेस्टमेंट है? सिर्फ 50,000 का ही है मैक्सिमम, ठीक है। वी विल चेक दिस प्राइसेस आफ्टर 1 hour, मतलब वंस द मार्केट गेट्स क्लोज वी विल नीड टू चेक कि क्या चल रहा है, कि भाग रहा है कि बैठ रहा है कि क्या हो रहा है, ओके। So you can understand why this prices are working, how these prices are working, and how can we hedge our positions. ये एक situation हुआ। Now if in this particular case, अभी मुझे ये लग रहा है कि market range bound है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। So I want this range to be broken. Unless and until this range is not broken, I will be waiting it. ये technical analysis का part है, I will be waiting. But just to understand, अभी इतना समझ में आया कि हमने positions कैसे hedge किए। We sold at the money
कॉल एंड पुट ऑप्शंस 35,500 एंड आउट ऑफ मनी कॉल एंड पुट ऑप्शंस दोनों को बाय किया हुआ है, सो दैट वो अनलिमिटेड जो पहले दिखा रहा था स्लोप वाला पोर्शन वो हेज हो गया। व्हाई? क्योंकि अगर गलती से कॉल ऑप्शन भाग गया तो मेरा आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन भी तो है मेरे पास, जस्ट टू डिफेंड माय सेलिंग पोजीशंस ऑफ कॉल जो मैंने सेल किया हुआ है। तो अगर कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ने लगी ऑल ऑफ अ सडन, इन दैट पर्टिकुलर केस हाउ व्हाट कैन आई डू? आई कैन ऑटोमेटिकली स्विच एंड बाय दिस पर्टिकुलर पोजीशंस। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया अभी? मैंने आउट ऑफ मनी बाय करके रखा हुआ है ना, तो अगर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ तो सब कॉल ऑप्शंस की प्राइस बढ़ेगी ना। तो सेल किया हुआ है वो लॉस में जा रहा है, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ मनी वाला जो बाय किया है वो तो प्रॉफिट में आया ना, तो हेज हो गया। एक लॉस दे रहा है एक प्रॉफिट दे रहा है, तो कुल मिला के दैट गॉट्स कैंसल्ड आउट। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या रहेगा आपका दूसरे केस सिनारियो में? अगर पुट ऑप्शंस एट द मनी पुट ऑप्शंस आपका सेल किया हुआ है और पुट ऑप्शन सब बढ़ने लगे, तो हमने 35,200 आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है टू हेज दैट पोजीशन, तो दोनों साइड हमने हेज कर दिया। अब हमको सिर्फ वेट करना है, सिर्फ 1 घंटे कहीं पे मतलब घूम के आ जाओ और 3,500 लेके जाओ। दिस इज द सेफेस्ट वे टू अर्न इन ऑप्शंस। सर्वर वो सेकंड इसमें तो लॉस हो रहा है ना 1:1 में। लॉस हुआ नहीं है ना, लॉस हुआ तो वी विल सी। We are see in the markets you always play on probability, ठीक है। अभी probability कितनी दिखा रही है? 37.5%, ठीक है। I still have 1 hour, I can either change my positions or I can continue with this। और अगर मेरा लॉस भी जा रहा है तो ठीक है, इतना बड़ा लॉस नहीं है, 3,500 का, I am only paying it, clear? Yes. So let's wait till the time the market expires। हाँ सर, वो हेजिंग के लिए जो हमने मतलब ये 4 ऑप्शंस जो लिए हैं, तो अमाउंट में उसको कैसे मतलब जस्टिफाई कैसे करेंगे? लाइक कितने अमाउंट हेज करने के लिए जो ऑप्शन है 4, तो वो जस्टिफाई कैसे करेंगे कि लाइक ये वाला ही बाय करना है रेंज में? सी दैट इज नाउ योर टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, ठीक है। वो अभी हम वो नहीं समझ रहे हैं। वी आर ओनली फोकसिंग राइट नाउ कि हाउ वी कैन लिमिट अवर लॉस, ठीक है। ओके। या अदरवाइज वो फिर चार्ट देख के फिर मतलब स्ट्राइक प्राइसेस हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करे या कौन सी सेल करे या किस में ज्यादा प्रीमियम है। दैट ऑल थिंग्स वी कैन टेक, बट वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस व्हिच वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट राइट नाउ। वी आर ओनली एज्यूमिंग कि कोई भी साइड चला जाए मार्केट, वी आर ओनली गोइंग टू गेन बेस्ड ऑन व्हाट द पोजीशंस वी आर मेकिंग। अगर नहीं हो रहे तो 3,500 का लॉस आएगा। यस, maximum that has to be the case as of now। see put option is rising, put option का आपने प्राइस क्या लिखा था? 30 रुपीस आई गेस, 35,500 put option। यस 30 लिखा था ना, अभी देखो कितना हो गया, डबल हो गया जस्ट नाउ। इट हैज नॉट इवन टेकन 10 मिनट्स, 30 का 60 हो गया। और वो कॉल ऑप्शन देखो 120 था, कितना 130 था, सॉरी, तो 130 से वो ये 100 रुपए आ गया, तो 30 रुपए ये बढ़ गया और 30 रुपए ये नीचे आ गया। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज बैलेंस्ड ओनली, गेटिंग इट? क्या इन द मनी कहाँ पे क्या है? इन द मनी नहीं, इन द मनी बाय करते हैं। हाँ तो आउट ऑफ मतलब जो भी अगर आउट ऑफ मनी बाय करते हैं तो हेज करने के लिए इन द मनी करना पड़ेगा। हेज करने के लिए अगर नहीं, कौन किसको सेल कर रहे हो पहले ये बताओ, या किसको बाय कर रहे हो ये बताओ? अगर आउट ऑफ मनी को बाय करेंगे, आउट ऑफ मनी को बाय कर रहे हो, क्यों बाय कर रहे हो पहले लॉजिक बताओ उसका। हाँ तो हेज करने के लिए जो भी बाय कर रहे हो अगर, तो प्रीमियम कितना है? 14 रुपीज है कॉल ऑप्शन का, 7 रुपए है इसका, कुल मिला के 21 रुपीज है। तो 20 रुपीज आई एम टेकिंग राउंड ऑफ, और 25 का लॉट साइज है, तो 500 रुपए का ही जोखिम है। तो 500 में क्यों हेज करना है? दैट इज माई क्वेश्चन इज। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पहले आपका अभी भी वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कि आउट ऑफ मनी क्यों बाय करने जा रहे हो। इन द मनी को सेल नहीं कर सकते, बहुत रिस्क बढ़ जाएगा। इन द मनी को सेल करना इज अ क्राइम, मार्जिन भी बढ़ जाएगा, और ऊपर से मतलब इफ वी चेक गलती से भी कोई इधर उधर हो गया ना मार्केट, हाँ कहीं पे तो हाँ तो करेक्ट। तो 360 रुपीज यू आर सेलिंग एंड यू आर बाइंग 14 रुपीज, तो मैक्सिमम हेज विल बी ऑफ ओनली 14 रुपीज। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 370 वाले को कैसे हेज करोगे फिर? अगर वो गलती से 400-500 तक चला गया तो ये तो आपको 14 रुपीज ही डिफेंड कर पाएगा आउट ऑफ 100 रुपीज गेन।
तो बाकी का 86 रुपीज विल बी योर लॉस। क्लियर? बट सी ज्यादातर रेंज में मार्केट प्ले करता है। अभी पिछले से दिस इज अ 2 मिनट कैंडल्स, ठीक है, 2 मिनट की हर एक कोई कैंडल। तो मैं अगर मैं दोपहर में कहा दोपहर इफ आई गो विद दिस फ्रॉम 130 अप्रॉक्स ऑनवर्ड्स इट इज ट्रेडिंग बिटवीन 35,550 टू 35,650, मतलब 100 पॉइंट की रेंज में ही खेल रही है मार्केट पिछले 1 घंटे से। तो वी नाउ जस्ट नीड टू चेक कि अगर कोई रेंज ब्रेक होता है कि नहीं होता है, कोई नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर इसको ज्यादा ही नीचे जाना है तो आई विल बाय नेकेड पुट ऑप्शन। नेकेड पुट ऑप्शन मतलब मैं हेज नहीं कर रहा हूँ, और कौन सा ले रहा हूँ वो ये भी बता रहा हूँ। वो आउट ऑफ मनी ही बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 7 रुपए में मिल रहा है। तो 25 into 7 रुपीज कितना हुआ? 175, मतलब 200 रुपए। तो मतलब ठीक है, अगर ये 7 का ऑलमोस्ट 70 हो गया तो मेरा तो मतलब चल गया ना वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट? 10 times money I will be making 250 का डायरेक्टली 2500। बहुत कम है। तो ऐसा एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट मतलब जब दूसरी बैच को दिखा दे मतलब उनका लाइव मार्केट्स में ऐसे चल रहा था डेमो। इट वाज अवेलेबल एट 12 रुपीज और 12 रुपीज का हो गया 300 रुपए इन जस्ट 20 मिनट्स। ठीक है, और मैं मतलब उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ये जो आउट द मनी है 35 गुड ऑप्शन वो 7 रुपए मिल रहा है, उसको 40 मिनट बाद सेल कर सकते हो, लेकिन उसका प्रीमियम निकल जाएगा अगर मार्केट रेंज में घूम रहा है तो टाइम वैल्यू इज डिक्रीजिंग ना। अभी टाइम कितना बचा है आपके पास? 1 घंटा बचा है। तो 1 घंटे के हिसाब से अगर आधा घंटा निकल गया तो आधा घंटा ही बचा है। तो आधे घंटे के हिसाब से ये 3.5 रुपए के आसपास चल रहा होगा सेट पे, कम हो जाएगा। करेक्ट, वही तो टाइम वैल्यू है। जितना टाइम वैल्यू कम है उतना ही आपका टाइम वैल्यू डीके हो रहा है इनडायरेक्टली। सी 35,200 पुट ऑप्शन कौन सी इस एक्सपायरी का है? नाउ 35,200 पुट ऑप्शन आई इवन हैव ऑफ 9th June। Now 35,200 put option I even have of 16th June available, ठीक है। Then 35,200 option even of monthly expiry। चारों की प्राइस देखो, सी सेम स्ट्राइक प्राइस है लेकिन चारों की प्राइस देखो, एक है 7 रुपए पे, एक है 320 पे, एक है 511 पे और एक है 680 पे। क्यों? क्योंकि हर एक में टाइम वैल्यू अलग है। एक का 1 हफ्ता बाकी है, दूसरे का 2 हफ्ता बाकी है और तीसरे का 4 हफ्ता बाकी है। तो ये अभी लेकर रख सकते हैं, पर लॉजिक क्या लगाओगे? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कैसे पता चलेगा कि 1 महीने के बाद बैंक निफ्टी अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? वो टेक्निकल एनालिसिस। हाँ, टाइम वैल्यू निकल जाएगा। 35,200 का देखो 680 चल रहा है, आउट ऑफ मनी है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 है। फिर भी 700 रुपए का प्रीमियम को देके बैठा हुआ है वहां पे। सी सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस अभी वो मत उसका टेंशन लो। जस्ट अंडरस्टैंड कि कौन 0 हो रहा है, क्यों 0 हो रहा है और कैसे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना कौन सी हम स्ट्राइक में खेलेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन तो फिर और कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको 35,200 लेना चाहिए, 35,300 लेना चाहिए, 35,400 लेना चाहिए, हमको पता ही नहीं। इससे बेटर आप ये समझो, यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ मनी। यहाँ पे अभी के लिए इतना ही सिंपल रखो। नाउ सी आई विल शो यू वन मोर थिंग। इसको निकाल देता हूँ पहले, और निकल गया 35। नाउ 36,000, ठीक है। 36,500 का कॉल ऑप्शन देखते हैं कितना चल रहा है अभी। सिर्फ 1 रुपया बचा है उसका, और यहाँ से कितना दूर है? 1000 पॉइंट इट इज अवे। तो 1 घंटे में 1000 पॉइंट नहीं घूमता है मार्केट। गेटिंग द पॉइंट? अब इसमें कुछ नहीं बचा है। सेलिंग क्वांटिटी देखोगे ना तो मतलब यू विल बी लाइक क्या चल रहा है, कितने लॉट्स मतलब चल रहे हैं लाइक। क्यों? 1 रुपया ही है। इवन इफ आई एम सेलिंग 20,000 क्वांटिटीज आई कैन मेक 20,000 स्ट्रेट अवे, लेकिन मार्जिन होना चाहिए। कितना? 1 लॉट के लिए कितना मांग रहे हैं ये लोग? 1,19,000। ठीक है, एक मतलब 1 लाख रुपए एक लॉट के लिए। तो 1000 लॉट्स के लिए यूनिट 1 लाख इंटू 1000 तो कितना होगा? 5 और 3 10 करोड़ रुपया। बाय करने के लिए सेलिंग मार्जिन नहीं, बाय करने के लिए तो 1 रुपया ही चाहिए ना आपको। बाय करने के लिए तो इतना ही चाहिए। 25 into 1 rupees दैट 31 रुपीस। लेकिन इसका मीनिंग नहीं है ना बाय करने का। वो 31 रुपीस विल टर्न टू 0। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ बाइंग? ऑलरेडी फार ओटीएम, ये तो बहुत दूर का ओटीएम है। 1000 पॉइंट 1 घंटे में मार्केट नहीं घूम सकता है। कैसे पता चलेगा? फ्रॉम दैट वो हमने ये ओपन इंटरेस्ट जो देखा था यहाँ से। कॉल राइटर्स कहाँ पे है? अब 36,000 पे पहले तो 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर दे,
और आप बाय करने जा रहे हो सिर्फ 1000 क्वांटिटी, तो 60 लाख तो सोचो कि कब क्लोज हो पाएगी, टाइम ही नहीं है इतना। ये सॉरी निफ्टी का है, लेट मी चेंज इट टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे तो 36,000 पे ही 55 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स है। नाउ व्हाई वो 5 लाख क्यों निकल गया, उसका लॉजिक ये है कि 36,000 का जो ये प्रीमियम है वो निकल गया होगा, इसलिए 3 रुपए ही बचा है। तो बिगर प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अर्निंग दोस 3 रुपीज, दे हैव शिफ्टेड देयर स्ट्राइक टू नाउ दिस स्ट्राइक। 35,700 के ऊपर भी आज एक्सपायरी नहीं देने वाले। देखो कितना ओआई चेंज हुआ, 34 लाख, वहां से प्रॉफिट बुक कर लिया और कहां पे आ गए, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 34,700 का कॉल ऑप्शन का प्राइस अभी कितना है वो चेक करते हैं। तो उसका चल रहा है 700, नहीं 35,700 सही है, हाँ ठीक है। 18 रुपीज चल रहा है, तो 18 रुपीज कमाने में भला है कि 3 रुपए कमाने में भला है, वो ऐसे ही सोचेंगे। 3 रुपए में तो मुझे एक लॉट में कितना 75 रुपीज मिलेगा, लेकिन अगर मैं 18 रुपीज वाला सेल करता हूँ तो 500 रुपए मिलेंगे डायरेक्टली। तो वो अपना लॉट वहां से हटा के 5 लाख निकाल दिया लॉट और 5 लाख यहाँ पे डाल दिया। वेरी सिंपल फॉर दैट। 10 CR तो कोई अमाउंट ही नहीं होना चाहिए। हाँ yes, 35,700 call option is going to expire at 0. That is what they are playing at. ठीक है, लेकिन वो hedge कैसे करेंगे? 35,700 को सेल किया, 35,800 को बाय कर लेंगे, क्योंकि 35,800 ऑलरेडी भी 10 रुपए या 8 रुपए के आसपास चल रहा होगा, फिर भी 8 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है। और अगर गलती से उस साइड चला गया तो इतना बड़ा लॉस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि hedge किया हुआ है। तो उसको सेल करके इसको बाय करना, मतलब बाय करके ये इन लोगों का यही चलता रहता है। पूरे एक्सपायरी के दिन पहले स्टार्ट करेंगे 36,500 पे। इफ यू चेक द प्राइस ऑफ 36,500, कितना 1 रुपए चल रहा है आज। उसका प्राइस देखो कहां से स्टार्ट हुआ था, ओपन कितने पे हुआ था, 7 रुपीज पे। उसको मतलब उसका टाइम वैल्यू निकालते गए 1 रुपए तक लेके आए। ठीक है, अभी भी कुछ तो ट्रेडिंग चल ही रहा है वहां पे। ठीक है, यू कैन सी द क्वांटिटीज दैट आर बीइंग ट्रेडेड राइट नाउ। ठीक है, अब 1 रुपए बचा है सिर्फ, तो 6 रुपए तो निकल गए। अब वहां से कहां शिफ्ट किए, फिर आए वो 36,000, सॉरी ये कौन सा था, 36,500, फिर आए वो 36,300, फिर आए 36,000। अब वो 36,000 से भी निकल गए, अब आए 35,700 पे। ऊपर से दिन से स्टार्ट होता है, 6 घंटे का मार्केट है, 1-1 घंटे में दे विल शिफ्टिंग देयर स्ट्राइक्स, शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि कुछ बचता नहीं है खाने के लिए। गेटिंग दैट पॉइंट, दे आर ईटिंग द प्रीमियम्स। इसको यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है, प्रीमियम्स आर बीइंग ईटन अप। ठीक है, प्रीमियम्स कैसे ईटन अप होता है, टाइम वैल्यू निकाल के। इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं किसी का। क्लियर, समझ में आया अभी? तो कॉल सेलर्स का भी इम्पैक्ट रहेगा ना उस पे टाइम वैल्यू के साथ? क्या कॉल सेलर्स का इम्पैक्ट रहेगा ना वो अमाउंट नीचे आने के लिए? ऑफ कोर्स या दैट इज व्हाई वी आर सीइंग द ओपन इंटरेस्ट ना। और पुट कहां पे खड़ा है, पुट राइटर्स 35,500 पे। कितना है वहां पे, टग ऑफ वॉर है। 50 लाख है पुट राइटर्स और 29 लाख है कॉल राइटर्स। कैन यू चेक ऊपर जो लिखा है, पुट ऑप्शंस 50 लाख एंड कॉल ऑप्शंस 29 लाख। अब वहां पे थोड़ा फाइटिंग चल रहा है। व्हाई? क्योंकि अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस कितना है, 35,533। हम जब देखना स्टार्ट किए थे 35,580 या ऐसा कुछ तो चल रहा था मेरे ख्याल से, राइट? तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पे 130 वाला कितना हो गया, 92, और 30 वाला सिर्फ 52। ऑलरेडी यू आर इन प्रॉफिट राइट नाउ। 130 का कितना, 90 आ गया, 40 पॉइंट निकल गया। और इसका तो अभी 30 पॉइंट भी नहीं हुआ, तो ऑलरेडी आई एम गेनिंग इन 10-15 पॉइंट्स। और एक लॉट के हिसाब से आराम से 500 रुपए बन गए मेरे। एज का भी पुट में कर सकते हैं, मार्केट गिर रहा है ना, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ये मैं निकाल देता हूँ, नीचे वाले निकाल देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। 1, 2, 3, आज रेमंड को देखा किसी ने? सी रेमंड इज शूटिंग लाइक एनीथिंग फॉर द पास्ट 2 to 3 days। मतलब किसी को अगर स्टॉक को ट्रेड करना है तो इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 990 रुपीज ऑन 30th May, और आज चल रहा है 1200 के ऊपर। 300 रुपए का डायरेक्ट गेन, मतलब 33% इन जस्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस। 33% का रिटर्न मिल गया सिर्फ 3 सेशंस में। कैन यू जस्ट चेक दिस? 3 दिन
28 में ये रहा डेटा, देखो 30th में क्या प्राइस चल रहा है, 953 से ऑलरेडी ये मतलब कितना हाई मारा है, 1224, तो 300 रुपए अप्रोक्स हो गया। 300 और 900 कितना हो, 1/3 is 33%। तो आधा तो गिर गया था 590 तक है, वो आपने देखा था। हाँ ये रहा अभी भी है लिस्ट में 590 का ऐसे कुछ हो गया, ये रहा 68 वापस अपर सर्किट आ गया। अगर एक ही दिन में सब कुछ मतलब डॉट ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है। हाँ वो ऐसे ऐसे करके जाता है, इट गोज इन अ जिगजैग मैनर। अगर ऐसे खींच देना है लाइन तो खींच दो हर एक स्टॉक्स का, सेंसेक्स हो जाएगा 1 लाख के ऊपर। इट डजंट गो इन दैट वे, ठीक है। HBL Power another one that moved very quick, वो चल रहा था कुछ 86 भी नहीं, यहाँ पे कितना था 81 था ऑन 30th में, और अभी आई थिंक वो होके आया है 101, तो 20% स्ट्रेट रेट, 20 रुपीज ऑन 40, तो 25% हो गया 2 दिन में HBL Power, ठीक है। और इसका सर LIC का क्या बोले थे, होल्ड नहीं करना। LIC तो मैंने माइनस में ही बोला, 807 तो वैसे ही चल रहे थे। देख लो कौन सा इसका चार्ट में दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है, ऊपर से जा रहा है वहां पे वो कैंडल थी, हाँ तो वहां से वापस वो सेल हो गया, वापस से नीचे आया, ये ब्रेक किया इस बार तो 700 का रास्ता खुल जाता है। 802 इज द सपोर्ट लेवल, 3 बार आया है ये, इस कैंडल में आया, सेकंड टाइम यहाँ पे आया, तीसरी बार तैयारी कर रहा है, ठीक है। वही हमारा टारगेट है नीचे जाने का। ये FIAM इंडिया एक्चुअली मैंने दिया था, यहाँ पे नहीं ऑफ कोर्स, सी इसका ये ब्रेकआउट था डेली में 976 था ऑन 27th में, ठीक है। वो भी आज हो गया 1050 से ज्यादा गया था एक्चुअली, कल ही गया था परसों। 1170 वाज द हाई मेड ऑन 31st में, तो 2 दिन में मतलब 100 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं, तो 10% आपको 2 दिन में मिल रहा है, तो क्यों मतलब या व्हाई शुड यू वेस्ट इट, ठीक है। Okay, now see if I just want to Bank Nifty का ये फ्यूचर है, see this is June future trading, और ये हम देखते हैं स्पॉट प्राइस, आज वो भी देख ही लो। See how much difference is there between future and spot price, can you check? Almost 100. so 100 रुपए on an average 100 rupees I am taking. Yes. Future is yeah, ठीक है, 100 रुपीज प्रीमियम में जा रहा है अभी फ्यूचर, दिस इज व्हाट आई कैन कंप्यूट। चलो ये फ्यूचर हो गया। नाउ आपको देखना था पुट ऑप्शंस का, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी बाइंग 35400 पुट ऑप्शन, ठीक है, 14 रुपीज में चल रहा है, एंड आई विल सेल 35200 पुट ऑप्शन। नेट मेरा कितना 10 रुपए का कॉस्ट है, 13 रुपीज पे बाई किया, 3 रुपीज वाला सेल कर दिया, तो 10 रुपीज आई एम द प्रीमियम दैट आई एम पेइंग। अगर मार्केट गिरता है only in that case I will be able to make the profits, but अगर मुझे अभी लग नहीं रहा है कि वो जा रहा है, रेंज बाउंड पे है, let me just check। नीचे से वापस देखो, यहाँ पे पहली बार ट्राई किया ब्रेक करने का, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, एंड नाउ दिस लाइन इज गेटिंग ब्रोकन। दिख रहा है ये लाइन मेरा ब्रेक हो रहा है, बट अभी वो रेजिस्टेंस है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा देखते हैं। अगर कर गया तो यहाँ तक जाएगा वापस, वहां से वापस नीचे आएगा, तो it plays in the range only, so ये chances of both getting zero are very high, so I will not be playing this particular hedge option as of now। ये technical analysis से पता चलता है, तो you will not be able to identify which strike prices you want to deal, but just understand कि आपने वो 10 रुपए पे खरीदा था, सॉरी 13 रुपीज के ऊपर और 3 रुपीज के ऊपर बेचा था, ठीक है। ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अगर ऊपर जाके टच करके आ गए तो ऐसा नहीं होता है, it has to close about that slanting line, trend line बोलते हैं इसको। ये 2 मिनट का ये कैंडल बन रहा है, लेट्स सी। तो हमारा वहां पे कितना चेंज आया वो देखते हैं अभी। अच्छा वो वापस 115 हो गया, देखा, और वो 60 तक जाके वापस 30 पे, मतलब मेरी गो अराउंड होता है, ये गोल घुमा के वापस वहीं पे आ जाते हो। तो एंट्री कहाँ पे करते हो ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू हैड एंटर्ड एट 30 डबल हो गया 10 मिनट में, एंटर्ड एट 60 वापस आ गए 30 पे, 50% कैपिटल निकल गया। एक्सपायरी में तो वही होता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे खरीदना है कहाँ पे बेचना है, इसलिए तो ऐसे बोल रहा हूँ कि 1 घंटे ऐसे लिखे मार्केट में कहीं पे जाके घूम के आ जाओ, ठीक है। हेजिंग में सबसे बेस्ट चीज यही रहता है कि आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लॉस भी तो मेरा 3500 ही है ना,
दैट इज फिजिबल फॉर मी। और एक लॉट के हिसाब से ही कर रहा हूँ मैं, तो 4 लॉट के हिसाब से करता तो ठीक था, तो फिर भी 12,000 का लॉस आता। आई विल बी प्लेइंग मैक्सिमम विद 4 लॉट्स इन दिस सिचुएशंस, ठीक है, मिनिमम 1 लॉट। नाउ अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ अभी मार्केट में क्यों एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी होती है तो कैसे जीरो हो जाते हैं, और कोई जीरो हो गया होगा। लेट्स चेक फॉर 37,000, बहुत दूर का कॉल ऑप्शन, 0.85 ऑलरेडी, उसमें भी 85 पैसे बचा के रखे हुए, ऑलरेडी इट इज लाइक 2000 पॉइंट्स अवे। और इसका ट्रेडिंग क्वांटिटीज देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं इसका, इसमें भी लोगों को ये भी नहीं छोड़ना है। 85 पैसे पे बेच दो और 0 पे बाय कर दो, फिर भी कुछ ना कुछ तो देके जाएगा। इवन इफ आई एम बाइंग 1000 क्वांटिटीज, ठीक है, तो भी 1000 रुपए तो मिलता ही है मुझे इसमें, श्योर शॉट है ये 1000 रुपए तो कंफर्म है अभी मेरा। बट दिक्कत ये है कि 1000 खरीदने के लिए, मतलब सेल करने के लिए, यू नीड 10 CR कैपिटल। देखा ना अभी हम लोगों ने कितना था मार्जिन इसका, अभी भी 1 लाख है। हाँ, तो 1 लाख मार्जिन है इसका, और 1000 क्वांटिटीज चाहिए मुझे। अगर मैं लिखता हूँ 1000, ओके, इतना नहीं चाहिए, 43 लाख चाहिए सिर्फ 1000 रुपए कमाने के लिए। बट दैट इज अ गारंटेड 1000 रिटर्न, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो अगर 10,000 क्वांटिटी करते हैं तो अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही हो गया, 4 करोड़ चाहिए, ठीक है, तब आपको मिलेगा 10,000 रुपए का रिटर्न। बट वो भी ठीक है मेरे हिसाब से, मतलब बड़े प्लेयर्स ऐसे ही करते रहते। सी कैंडल क्लोज दिया, डायरेक्टली अप हो गया, आई कैन ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस इन दैट वे। अगर बहुत ऊपर चला गया, in that case there will be short covering. What is short covering? Short covering क्या होता है? मैंने शॉर्ट किया हुआ है, कॉल राइटर्स ने शॉर्ट किया हुआ है मार्केट को, ठीक है, तो अगर मार्केट एकदम से बढ़ना स्टार्ट किया तो कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी, तो जिन्होंने शॉर्ट किया है वो भी तो खरीदने आएंगे, उनका तो बहुत अनलिमिटेड लॉस वाला सिचुएशन हो जाएगा, तो वो भी जुड़ जाएंगे खरीदने के लिए, तो मार्केट को और ऊपर करेंगे। एंड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यू विल फाइंड दिस 2 रुपीज 3 रुपीज वाला ऑप्शन फ्लाइंग टू 100-200 रुपीज, क्योंकि लोग फिर जो भी मार्केट पे मिल रहा है उस हिसाब से बाय करना स्टार्ट करेंगे रैंडमली, तो वो प्रीमियम बढ़ जाता है। शूट अप ही होता है, बढ़ता तो नहीं है, शूट अप ही बोलते हैं उसको। लॉस नहीं किया है, लॉस स्टार्ट हो गया है, लॉस स्टार्ट हुआ तो आप अपनी पोजीशंस कवर करोगे। उन्होंने सेल किया है, नहीं हेज नहीं आता, हेज क्यों आएगा? सेल जो किया है उसको बाय तो भी तो करना पड़ेगा ना, पोजीशन ट्रेड क्लोज कैसे करोगे, वरना बाय किया है तो सेल करोगे और सेल किया है तो बाय करोगे। अगर मैंने ये 7 रुपए वाला सेल किया है तो मुझे बाय भी तो करना पड़ेगा जब 0 होगा, या 10 पैसे 20 पैसे जब होगा उसका प्राइस। गेटिंग द पॉइंट? तो हेज नहीं आता है उसमें। हेज का तो पोजीशन आप पहले से अगर कुछ क्रिएट करना है, जैसे हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, हाँ, तो तब जाके आप हेज क्रिएट करते हो जब मुझे पता नहीं है कि मार्केट अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है और 2-3 घंटे का टाइम बाकी है उस टाइम। बट बिफोर दैट आई विल नॉट क्रिएट एनी हेज पोजीशंस। अब यहाँ पे देखो दोनों का टाइम वैल्यू निकल गया, 130 से 104 और 30 से 26, दोनों का टाइम निकल गया। तो हम हमारे पुट वाले जो पोजीशन है वो क्लोज कर देंगे हेजिंग वाले में। No, why we will close? If market is booming up, then what we'll do? We'll buy. No. If I want to change the, हाँ, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो पुट वाले you can shift, because of course in the case आपकी पुट ऑप्शन की जो प्राइस है वो 0 तक जल्दी जाएगी कंपेयर टू योर कॉल ऑप्शन, ठीक है? Yes. बट यहाँ पे वी आर नॉट चेंजिंग द स्ट्राइक प्राइसेस, वो सब हम चीजें नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो फिर टेक्निकल में ज्यादा चला जाएगा। कौन से स्ट्राइक पे शिफ्ट होंगे, कितना शिफ्ट होंगे, वो सब चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ कि which options are turning 0, how hedge positions are created in the market, what is in the money, what is at the money, and what is out of money. Okay. Yeah. See 85 से डायरेक्टली आ गया 55 पैसे पे, ठीक है? जैसे ही एक कैंडल नेगेटिव बना तो स्टार्ट हो जाता है निकलना वैल्यू। 90 और 30 जनरली कैसे काउंट होता है? कंबाइंड प्रीमियम काउंट होता है। तो कंबाइंड कितना था? 130 था उसका कॉल का और 30 था पुट का, तो कुल मिला के कितना मिल रहा था? 160, और 160 का अभी कितना हो गया है?
दिस इज 90 एंड दिस इज 30 120, तो 40 रुपए का तो स्ट्रेट गेन हो गया ना मेरा। अभी कितना हमने कब स्टार्ट किया था? आधे घंटा हुआ शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वी विल स्टिल वेट टू अर्न दैट 3,500 ये प्योर रेंज बाउंड है, कुछ भी नहीं चल रहा है मार्केट में। फ्लक्चुएशन इज लाइक इट इज प्लेइंग इन द सेम 100 रुपीज रेंज, ना 35,600 के ऊपर जा रहा है और ना 35,500 के नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि 35,600 के ऊपर बहुत सारी कॉल राइटिंग होके रखी हुई है और 35,500 पे पुट राइटिंग बहुत है। रेंज बाउंड, हाँ रेंज बाउंड में पुट सेलर्स एंड कॉल बायर्स they will be in a rock solid position in 100 point range. Why? Because we have seen already in open interest thing कितना है यहाँ पे 700 पे है 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 35,500 पे है आपके 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। लेट मी जस्ट रिफ्रेश अगर कुछ डेटा चेंज होता है तो। हाँ सी 35,500 पे पुट रेटिंग बढ़ गई 50 से 54 लाख हो गया और वो 30 लाख से 29 लाख वो कम हुआ, तो पुट राइटर्स आर नाउ हेवी ऑन 35। तो अभी के हिसाब से 35,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जा सकता है। अगर गया तो ये सबके सब 54 लाख बाइंग में कूद पड़ेंगे मतलब शॉर्ट कवरिंग जो मैंने आपको भी समझाया, ठीक है। उनका शॉर्ट पोजीशन है 35,500 पे और अदरवाइज क्या होगा 35,300 हो गया तो इन द मनी हो गया ना 35,500 पुट ऑप्शन, तो वो जो चल रहा है ना 30 रुपए वो 200 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे चल रहा होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो 30 रुपए पे बेचा हुआ है 200 चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है 170 रुपीज इज योर लॉस पर लॉट। और ये कोई सिंगल लॉट वाले नहीं है, ये है बड़े लॉट्स वाले। क्लियर हुआ? 5,000 रुपए डायरेक्टली लॉस हो जाएगा ऑलमोस्ट स्टार्ट आपका एक लॉट पे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर 100 लॉट भी हुआ तो 5 लाख का डायरेक्टली लॉस दिखा देगा। क्लियर? अब समझ में आया कैसे शॉर्ट कवरिंग आती है, कैसे लॉन्ग बिल्टअप होता है, कैसे पोजीशन स्ट्राइक प्राइस चेंज होती रहती है। तो वी आर जस्ट लुकिंग एट इट। सी वही ट्रेंड लाइन पे वापस सपोर्ट किया, वापस से ये बाउंडिंग, ये तो मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया था। सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला समझा आपने एग्जैक्ट? क्या बोल रहे हो? ये इंट्रिंसिक वाला समझा नहीं आप एग्जैक्ट? इंट्रिंसिक वैल्यू या ना, मैं ये बोल रहा था कि हमने जो ये 30 रुपीज के ऊपर सेल किया है 35,500, ठीक है। यस। तो अगर मार्केट यहाँ से बहुत गिर जाता है 35,500 का लेवल भी ब्रीच कर देता है, स्पॉट प्राइस की बात हो रही है निफ्टी की, ठीक है, और चला जाता है 35,300 के ऊपर, तो 35,500 का पुट ऑप्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा उस टाइम पे? 200 रुपए मिनिमम कम हो जाएगा। सो दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। यस। ओके, इन द मनी हो जाएगा, आउट ऑफ मनी वाला, यस, नॉट आउट ऑफ मनी, एट द मनी, ठीक है। यस या तो वी विल वेट टिल दैट टाइम, लेट्स सी। ये ब्लू लाइन है वो पाइवोटल रेंज है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है। इट इज नॉट दैट इजी टू ब्रेक दिस रेंज, लेकिन यहाँ पे भी अभी कॉल मतलब पुट राइटर्स आ रहे हैं धीरे धीरे, तो ठीक है। बट शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप क्या होता है? व्हाट इज लॉन्ग बिल्टअप? creating a long position. So either I am buying any call option or either I am buying any put options. ठीक है? Yes, उसमें आएगा। लॉन्ग बिल्टअप अगर हेज नहीं किया है तो अनलिमिटेड लॉस प्रॉफिट होगा। बट अगर प्रीमियम छोटा है, मतलब जैसे मान लो ये 1 रुपये वाला बाय किया है, तो इसका मैक्सिमम लॉस क्या आएगा? मेरा मैक्सिमम लॉस विल बी 42 रुपीज, 31 और 42 अराउंड। शॉर्ट कवरिंग में लॉस के चांसेस ज्यादा है अगर आपने शॉर्ट किया है मार्केट को, लेकिन अगर वो ट्रेंड को पकड़ लिया आइडेंटिफाई करके और बाय किया है, हाँ, और अगर बाय किया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला सिचुएशन हो जाएगा। बट इतना इजी नहीं है ना वो, तो हर कोई वही करता। हाँ सर, ये चार्ट कौन सा है एग्जैक्ट? हाँ, चार्ट कौन सा है ये? MACD और उस वो रेंज में? ये चार्ट कौन सा है? बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। यानी ये कैंडलस्टिक वाला है, बट वो जो MACD वगैरह रहता है ना फिल्टर, वो वाला? वो इंडिकेटर्स है। नहीं, वो इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो ब्लू वाला जो है वो इंडिकेटर है कौन सा? यस, पाइवोट पॉइंट्स, स्ट्रांग रेजिस्टेंस, पाइवोट पॉइंट्स। ओके। तो वही हमने किया ना, पहले दोनों को एट द मनी को सेल किया, वो क्या है, फिर हेज की अलग बात है, लेकिन पहले इफ आई एम सेलिंग एट द मनी तो वही तो मैं स्ट्रेडल कर रहा हूँ ना, दोनों को सेल कर रहा हूँ। स्ट्रेंगल है तो दोनों बाहर के दोनों को बाई कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, एनी ऑफ द थिंग्स।
ऑल राइटर्स आर आल्सो ट्राइंग एफसी कॉल का ऑप्शन देखो कितना कम हो गया 75 रुपीस, कहाँ 130 था कहाँ 75 है, वो 30 पे ही चल रहा है, उसका ऑलमोस्ट आधा करने पे आ गए, मतलब 130 इज लाइक 65 विल बी द हाफ प्राइस. डोंट गो फॉर द डायग्राम्स, वो कंफ्यूज हो जाओगे. वो ऑप्शा में जो हम कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे ये किया है, वो फिर आपको और कंफ्यूज करेगा. दिस वन एनीवेज, वो प्राइसेस हमने लिखी हुई है, वो चारों पोजीशंस मुझे वापस डालनी पड़ेगी, बट ठीक है, वी विल जस्ट चेक द प्राइसेस ओवर हियर ओनली. ठीक है, आप जो ये डायग्राम्स वगैरह करोगे ना, डोंट गो फॉर दिस डायग्राम्स, बहुत कंफ्यूजन आएगा, अवॉइड इट. जस्ट अंडरस्टैंड द पोजीशंस की कैसे पोजीशंस काम करती है, कौन कौन सी कहाँ पे जाती है, दोनों की टाइम वैल्यू निकल रही है. ये 25 हो गया और ये भी 87 हो गया. ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही 0 ही है, बट फॉर द सेक ऑफ आवर हेजिंग वी हैव एडेड देम. ठीक है, तो इज इट नाउ क्लियर कंसेप्ट ऑफ नाउ इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ मनी ऑप्शन. ठीक है, जब तक ये रियल ट्रेड मार्केट में नहीं देखोगे तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम आने ही वाली थी. तो यही एक रीजन था आई ऑर्गेनाइज्ड दिस सेशन फॉर यू टुडे. लेकिन बाकी बहुत कम आए, बाकी सब कहाँ पे? अक्षय एंड मिताली, आर यू देयर? Yes, I'm listening. Akshay. Yeah, Akshay, I got it. Mitali, are you there? Okay. तो बाकी सब कहाँ पे गए? Today is working, no? हाँ, So वही maybe jobs, they are वही, working. ठीक है ना. चलो कोई नहीं. अभिराम का क्या सिचुएशन है? Anyone in contact? वो बीच में आया था यहाँ पे, and then पता नहीं. Let's see. हाँ, वो एडमिट हो गया, ठीक हो गया, रिकवर भी हो गया. उसके बाद ये कम टू द सेंटर यहाँ पे, मतलब सम पता नहीं कब, मतलब शाम को आया था एक बार, और मैंने उसको फिर वही बोला था, क्योंकि उसने शायद ऑप्शन तो हमारे साथ किया था, मुझे याद है, स्वैप्स में वो सिर्फ नहीं था. तो मैंने उसको बोला कि आई विल सेंड यू द वीडियोस वगैरह, देख लेना एंड गिव द मॉक्स. लास्ट सैटरडे या उसके पहले ही आया था. चलो देखते हैं. Any doubts now in this options strategies? तो ठीक है, लेकिन सी क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं. अगर मुझे कॉल स्प्रेड क्रिएट करना है तो कॉल में मैं क्या करूंगा, मैं 35,500 बाय कर दूंगा, 35,800 को सेल कर दूंगा. ठीक है, और अगर सिमिलरली पुट ऑप्शंस में भी कर सकते हो, बट दिस इज ओनली फॉर द इंडेक्स ऑप्शंस वी आर ट्रेडिंग. आपको फिर एग्जांपल्स देने पड़ सकते हैं रिलायंस का या तो फिर बजाज फाइनेंस. यू कैन टेक एनी प्राइस. आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जरूरी नहीं कि लाइव मार्केट प्राइसेस ही होना चाहिए. आप डायरेक्टली बोल दो कि रिलायंस 2500 पे ट्रेड कर रहा है, तो I have bought 2500 call option and I have sold 2600 call option, और I have sold 2700 call options. अगर नीचे जा रहा है, अगर नेगेटिव बायस है मार्केट का, मतलब if we are assuming कि रिलायंस का भाव गिरेगा, तो I am buying 2500 put option and I am selling 2300 put option, or I am buying 2700 in the money put option and I am selling at the money 2500 put option. ठीक है, clear? Any doubts? Put वाला exact क्या? 25,000. That you can pick any. I am just giving one example. Let us check. हाँ, ठीक है. जैसे अभी सी 3.5% अप है 2700. इसमें मुझे कॉल स्प्रेड क्रिएट करना है. कॉल स्प्रेड क्या होता है? There are two ways. Either I can buy 2500 call option, or I can even buy 2700 at the money call option. ठीक है, दोनों का प्रीमियम अलग अलग है, लेकिन उस हिसाब से जिसका जितना कैपिटल है उस हिसाब से वो बाय करेगा. अगर आप इसको बाय करते हैं तो कितना पैसा चाहिए? 60,000, राइट? बट इफ यू वांट टू बाय एट द मनी तो कितना पैसा चाहिए? यू नीड ओनली 24,000. So if you have limited capital, then don't buy in the money option. You go for buying at the money option, और उसके साथ Reliance 2900 call option को सेल कर दो. तो कितना क्रेडिट में प्रीमियम पे कर रहा हूँ? 96 बाइंग में और 26 सेलिंग में. 70 रुपीज द प्रीमियम आई एम पेइंग टू द मार्केट. 96 minus 26, ठीक है, 70 रुपीज. तो दैट इज अ प्रीमियम. तो मेरा प्रॉफिट तब होगा जब कम से कम 70 रुपीज रिलायंस बढ़ जाए. तब जाके उसका तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ बढ़ेगा ना उतना. हाँ, करेक्ट. यस. एनी डाउट? हाँ, तो ब्रेक इवन वही हुआ ना, 70 रुपीज. जितना प्रीमियम आप पे करते हो मार्केट में, दैट इज योर ब्रेक इवन डिफरेंस. 70 रुपीज का डिफरेंस है यहाँ पे.
96 पे किया है और 26 रुपए मैं वापस ले रहा हूँ, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? रिलायंस की बात चल रही है नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो 70 रुपीज का डिफरेंस है यहाँ पे। तो जब तक वो 70 रुपए आप ब्रेक इवन नहीं करते हो तब तक आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो 70 ब्रेक इवन कब होगा? जब रिलायंस का ये 2726 प्लस 70 रुपीज वहां पे ऐड करना है। तो रिलायंस का भाव हो जाएगा कितना? 2796, मतलब 2800 रुपए। तो ऑटोमेटिकली योर 2700 कॉल ऑप्शन इज गोइंग टू जंप बाय दैट इंट्रिंसिक वैल्यू। ब्रेक इवन जो आ रहा है उसको स्पॉट प्राइस में ऐड करो। लॉजिक समझो कि क्यों ऐड कर रहे हैं। 70 रुपए क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी मैंने मार्केट को देके रखा हुआ है 70 रुपए। हाँ, तो उतना तब जाके हाँ ब्रेक इवन पॉइंट होगा। 70 पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, दिया है। जो मैंने मतलब इन्वेस्ट किया था 70 रुपए, वो मुझे सिर्फ वापस आ रहा है, वो मेरा कैपिटल ही वापस आया। 70 के आगे कुछ जाता है तब जाके योर ब्रेक इवन इज ब्रोकन, एंड आफ्टर दैट जितना भी आपको मिल रहा है वो आपका प्रॉफिट है। ऐसे फॉर्मूला मत याद रखो, कैसे 70 रुपीज आए ये समझो। 70 हाँ यस, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो और कोई भी आप प्राइस सिलेक्ट करें। ऐसा जरूरी नहीं कि 96 का एग्जांपल देना है। यू कैन स्पीक के 2700 कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 50 रुपीज एंड 2900 इज ट्रेडिंग एट 25 रुपीज। तो डिफरेंस इज 25 रुपीज, 50 minus 25. 25 is the premium that I am paying to the market, so that is my break even point, 25 rupees. जब 25 को क्रॉस करेगा 25 रुपए का हाँ, then I will start making profits. Clear? ठीक है, सबको समझ में आया क्या? हाँ, दो अभी एग्जांपल कोई भी। चलो लेट मी गिव वन TCS या कोई मार्केट का देते हैं। जब तक ये जीरो भी अच्छा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। रिटेस्ट किया, रिटेस्ट से तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नाइस। So I was speculating the bull side only to break this trend line. देखो 133 हो गया और वो कितना हो गया? 30 का 8 हो गया। और यहाँ पे ये हाँ नीचे वाला 10 रुपए हो गया। वो कितने पे बाई किया था हमने? 35,800, 20 रुपए पे ना। ठीक है चलो, हाँ तो उसको कम से कम अभी वो 20 रुपए को क्रॉस करना है। दैट इज द रेंज। अभी इसको और आगे जाना है, तो लेट मी जस्ट मार्क वन टेक्निकल लेवल। वही तो मैं बोल रहा था कि पुट वाले तो बढ़ रहे हैं, 54 लाख हो गए ना 50 से। तो देयर अगर पुट राइटिंग हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? मार्केट बढ़ रहा है। कॉल राइटिंग बढ़ता तो आई विल बी ऑन द नेगेटिव साइड। दिस इज माय लेवल। इसको निकाल दो आगे, फिर आएगी शॉर्ट कवरिंग। 35,652 इज द स्पॉट लेवल। अरे बाप रे क्या भगाया है, देख रहे हो? ये 174 हो गया है 130 वाला। शॉर्ट कवरिंग की ऑलमोस्ट तैयारी है, ऑलमोस्ट। इसके आगे जाना चाहिए। अच्छा वो वहीं से इसके आगे चलेंगे। 12 हो गए ऑल ऑप्शंस। ठीक है, आई विल सी दिस लेवल, आई वांट टू सी दिस लेवल। मैंने तो वहां पे मार्क किया हुआ है ना, वो अगर क्रॉस करता है आई नीड अ कैंडल क्लोजिंग अबाउट दैट थिंग, तब जाके मैं बुलिश होऊंगा इन द मार्केट। बट आई एम वेटिंग। वहीं पे खेल रहा है। परफेक्ट लेवल था नहीं? परफेक्ट लेवल से राउंड किया है। वही तो मैंने डाला था ना, इसलिए कि यहाँ पे जाके रुक जाओ, थोड़ा पॉज लेता है। अगर यहाँ से इफ देयर इज नाउ ग्रीन कैंडल मेकिंग आफ्टर दिस कैंडल, देन आई एम बुलिश, सुपर बुलिश हो जाऊंगा। फिर इस 10 रुपए वाले को देखते हैं कि क्या सिचुएशन होता है। ठीक है, इट इज ट्राइंग अगेन नाउ। हाँ ठीक है, उसके आगे ही जाना है उसको। अब 3:30 अभी आधा घंटा है ना, इसलिए तो गेम चलता है ये। एक बड़ा रेड कैंडल और कॉल पुट राइटर्स की हालत खराब, क्योंकि 35,600 जिन्होंने कॉल राइटिंग किया है वो बेचारा ये तो सोच रहा था कि आउट ऑफ मनी था अभी तक तो मार्केट, अब डायरेक्टली इन द मनी हो गया। तो वो भी तो ट्राई करेंगे कैसे भी करके। नाउ दे विल ट्राई टू सेल HDFC बैंक, दे विल ट्राई टू सेल ICICI बैंक, दे विल ट्राई टू सेल एक्सिस बैंक। नहीं इन द मनी नहीं, वो शेयर्स बेचेंगे तभी तो इंडेक्स नीचे आएगा ना इसका। वही तो 3 बैंक्स होते हैं। मैनेज कैसे होता है इंडेक्स? इंडेक्स को मैनिपुलेट करने इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बड़े प्लेयर्स के लिए।
ट्राई तो अच्छा था। देखो इसका भी पुट ऑप्शन को भी 95 पैसे पे लेकर आ गए, तो पुट ऑप्शन तो चलो ठीक है। चलो एक रेड कैंडल है, आई एम वेटिंग नाउ फॉर वन मोर कैंडल, बस एक और लाल कैंडल और रेंज बाउंड फॉलो अप कैंडल बोलते हैं उसको, ये मदर कैंडल होती है। हाँ मैनिपुलेशन नहीं क्या, लेवल्स के हिसाब से चलता है गेम पूरा। पिछले 1.5 घंटे से इफ यू चेक दिस लेवल, ये कैंडल कब बना था 1449, उसके पहले अगर हम देखते हैं तो सी मार्केट वहां उस लेवल तक गया ही नहीं था, करेक्ट। सी इफ आई चेक फॉर द एंटायर टाइम फ्रेम, पूरे दिन में वो वहां पे लेवल क्रॉस ही नहीं किया था। सुबह किया है, कितने बजे किया है, सी दिस वाज द लेवल, 10 बजे को क्रॉस किया है। अब 10 बजे के बाद वो उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। कैन यू चेक, यहाँ पे दूसरी बार अटेम्प्ट हुआ, नीचे आ गया, तीसरी बार अटेम्प्ट हुआ है। अभी द बुल प्लेयर्स आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल फॉर द थर्ड टाइम, बट अभी वापस से अगर गिरा, अरे देखो ये प्रीमियम देखो 170 से डायरेक्टली 95 पे। इफ यू हैव एंटर्ड एट 175, अरे काटा, गंदा काटा। देखो समझ गए क्या प्लेयर की चाल होती है, सब ट्रैप, ऑल दीज ग्रीन कैंडल प्लेयर्स ट्रैप्ड। नाउ सी द प्रीमियम्स नाउ, समझ में आया कैसे मैनिपुलेट होता है, ये लाइव मार्केट को देख के ही पता चलता है। Butchered, only one word for them, they are totally butchered। इसलिए तो hedge किया है ना हम लोगों ने, hedge क्यों किया है मैंने, और जिन्होंने भी कॉल ऑप्शन 358 पर 0 लिया होगा, ये 5 लेकिन उसका मार्जिन में ज्यादा होगा। 3580 I will not buy। 10 बजे तक वो उसी रेंज में था, 652 was the highest point, second time attempted, third time they are attempting, now the bear players are trying hard to keep below 652, थर्ड अटेम्प्ट है ना। पूरा दिन अगर मतलब सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद बड़े प्लेयर्स आते हैं, एक बड़ा कैंडल डालते हैं, बड़े कैंडल में जैसे ऊपर गया वापस से नीचे कर दिया। तो ये सब रिटेलर्स थे, ये जो छोटे छोटे कैंडल्स है ना, ये सब रिटेलर्स ही है, ठीक है। यहाँ से इनको कैसे काटा, इस कैंडल ने काट दिया। अब यहाँ ऊपर से किसने काटा, यहाँ इस कैंडल ने काट दिया। तो अपने रिटेल वाले तो बेचारे कहीं पे रहते ही नहीं है, तो इसलिए बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू क्रिएट हेज। अब देखो इसका प्रीमियम 176 से 76 हो गया, 100 रुपए निकाल दिया डायरेक्टली 2 कैंडल में, 4 मिनट में 100 रुपए का लॉस, 25 की क्वांटिटी मतलब 2500 गए आपके। ये हेजिंग में हम लिमिट लगाकर एग्जिट भी कर सकते हैं ना पोजीशंस? एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट चल रहा है हमारा आराम से। कितना प्रीमियम है देखो, 65 प्लस 14 मतलब 80 पॉइंट्स, और हमारा कितना था 160 था, करेक्ट। यस क्लियर। अरे बाप रे क्या सही में परफेक्ट लेवल से सेल किया होता, मतलब यहाँ पे मैंने पुट बाय किया होता ना 35,600 वाला, 35,600 का पुट ऑप्शन कहाँ गया। सीरियसली आई कुड हैव मेड मनी। दिखा भाई चार्ट, यहाँ पे मेरा बाइंग आता कुछ 13-14 रुपीज पे, और देखो डायरेक्टली उसको लेके गए हैं 70 तक। वो मैंने खोल के रखा नहीं था, अदरवाइज यू कुड हैव सीन कि 13 रुपीज से डायरेक्टली जंप कर गया है 70। गुड ऑप्शन। अभी का अभी मैं लाइव मार्केट में आपको बाय करके दिखा देता हूं, ध्यान ही नहीं था मैं एक्चुअली वो ये दिस पर्टिकुलर लेवल्स आई वाज कांस्टेंटली चेकिंग। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन, मतलब कैसे प्ले होता है, कौन सी रेंज है। रेंज ठीक है, बट आपको तो सिर्फ यही चीज समझना है कि कौन सा जीरो हो सकता है, कौन सा जीरो नहीं होगा। जीरो होगा तो क्यों होगा, ऑफ कोर्स आउट ऑफ मनी ऑप्शंस, इंट्रिंसिक वैल्यू इज ओनली देयर फॉर द इन द मनी ऑप्शंस, काउंट द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, कैलकुलेट ब्रेक इवन। तो ये सब चीजें डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में आ सकती है इन द मॉक्स आल्सो एंड आल्सो इन द इंटरव्यू। ठीक है, उसने वो कुलदीप ने बजाज फाइनेंस का बोला था, सिमिलर एग्जांपल पूरा उसने एक्सप्लेन किया था इंटरव्यू में। चारों का टोटल, नाउ टेल मी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट दैट वी आर मेकिंग राइट नाउ। चारों के प्राइसेस हैं आपके पास, ठीक है।
जस्ट काउंट हाउ मच प्रॉफिट वी आर मेकिंग. 2 को सेल किया है, 2 को बाय किया है. अकॉर्डिंगली अभी चारों के प्राइसेस आपके सामने हैं, काउंट कर लो, मल्टीप्लाई इट विद 25. कितना हो रहा है? Any random? Tell me. इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे. 58 points I have gained, and as of now 27 rupees I have lost. So 58 minus 27 is 31 points into 25 is 775 rupees per lot profit. 750 750 के 800, मतलब जो भी आपका प्राइस आपने लिया होगा. कितना आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? क्यों? हाँ? आपने ये 35,500 कितने पे बेचा था? अभी कितना चल रहा है? हाँ ठीक है, हाँ 61 था, ठीक है. तो बाय कर रहे हो एट 61, यू आर बाइंग एट 61 एंड सेलिंग एट 130. कितना प्रॉफिट होगा उसमें? 130 माइनस 61 कितना आ रहा है? 90. 130 माइनस 61 कितना? तो यू आर बाइंग एट 61 एंड सेलिंग एट 130. 130 माइनस 60 कितना होता है ये बताओ पहले. 70 होगा ना. तो 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ये समझ में आया? कैसे हुआ? करेक्ट. लॉट साइज इज 25. ठीक है, तो 70 into 20 25, राइट? ओके सर. हाँ, तो बाकी तीनों का उस हिसाब से ही होगा. पीछे आ गया सबको? इनको range bound here. It is trying hard, but होगा नहीं. Let me just check the open interest in 35,600 level now. वहाँ पे call writers कितने हैं वो check करते हैं. 35 lakhs are there. Put option be 35 and 20. 60 ना सर. तो call जब ना call option इन में था वो 60,000. हाँ और उसको नहीं कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली 60 पे ही बाय करना है? दैट इज अ क्वेश्चन देन. ऐसा कोई पिन पॉइंट करके अगर मतलब हमको पता चलता है तो अच्छा है ना कि यहाँ से 60 का 120 होगा. नो, आई विल बी बाइंग ओनली इफ इट इज ब्रेकिंग नाउ दिस लेवल, दिस रेड कैंडल लेवल. तो मैं तब जाके क्या बाय करूंगा? 35,700 का कॉल ऑप्शन व्हिच इज ट्रेडिंग एट 2 रुपीस. बट मैं तब तक अभी बाय नहीं करूंगा.
ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है, आपको वेट करना पड़ता है लेवल के लिए। हमने यहाँ पे लेवल का वेट किया था, अगर ये कैंडल मतलब जैसे कि ब्रिज किया, रिटेस्ट के बाद डायरेक्टली एक कैंडल दे दिया। सिमिलरली अगर अभी ये ऊपर का कितना है हाई, वहाँ पे लिखा है 35,656, अगर वो क्रॉस करके सस्टेन करता है, सस्टेन मतलब कैंडल का क्लोजिंग आता है 2 मिनट 3 मिनट जो भी है, तो देन आई विल बाय 35,700 कॉल ऑप्शन। क्यों? क्योंकि फिर 600 कॉल राइटर्स आर ट्रैप, 35,500 कॉल राइटर्स आर आल्सो ट्रैप, और टाइम बचा नहीं है। लेकिन टाइम अभी 20 मिनट ही है, तो आई डोंट थिंक सो 20 मिनट में कुछ होगा। अभी लास्ट के 20 मिनट में कुछ ज्यादा नहीं होता। ये तो पोजीशंस दे आर क्लोजिंग, ये जिन्होंने मतलब सेल किया है ना ऊपर से, ये इन्होंने वही बाय किया है, ठीक है, और कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, तो वी विल वेट। $35,500 के आसपास क्लोजिंग देना तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। व्हाई? बिकॉज ये आपका 100 रुपए वाला ये अभी भी चल रहा है ना थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, तो ये थोड़ा अभी प्रीमियम इसका इतना डैमेज नहीं हुआ जितना बाकी तीनों का हो गया। बाकी के तीनों का देख सकते हो ना, 55 पैसे 75 पैसे। कौन सा? ₹2.90 वाला? हाँ 35,500, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देता है वो देखते हैं। अगर 500 के नीचे गया तो भी इतना कुछ वैल्यू नहीं है उसका, इंट्रिंसिक वैल्यू इतना जाएगा भी नहीं, टाइम वैल्यू तो जीरो ही है। जो डैमेज करता है वो ऊपर में ही अभी करता है, वो कितना हो सकता है मैक्सिमम दैट वी आर वेटिंग। प्रॉफिट तो कंफर्म ही है, बट आई एम जस्ट वेटिंग कि 35,500 अभी कितना देके जाता है अभी बाकी के 15-20 मिनट में, ठीक है। आया समझ में अभी? इज ए क्लियर कंसेप्ट अभी बेटर? आउट ऑफ मनी आपको शायद वो सेशन ही नहीं अटेंड किया था ना ऑप्शंस का, हाँ तो अभी क्लियर हो गया, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, ठीक है। ऑनलाइन में से एवरीवन डाउट्स आर क्लियर? यस, ठीक है। इफ इट इज इंक्रीजिंग लेट मी जस्ट कीप ओवर हियर 35,700 जस्ट फॉर आवर मार्क वाचिंग इट। अभी ₹2 चल रहा है, बट आई विल नॉट बाय अनलेस दिस ब्लू लाइन मार्क क्रॉस करता है। एक्चुअली निफ्टी में रिलायंस मूव हो रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है ना कि जो निफ्टी बैंक को खींच पाए आज, हाँ, तो दैट इज व्हाई इट इज ट्रैकिंग इट बैक। बाकी सबका तो जीरो ही हो गया है, ऑल आउट ऑफ मनी ऑप्शंस आर जीरो। अगर पूरे दिन में देखने को जाओ ना, से निफ्टी में कोई चेंज ही नहीं है। हैव यू सीन दिस? ओनली 0.03%। कैन यू चेक? जो सुबह में लेवल था वही मतलब कल क्लोजिंग वाला लेवल, कल जहां पे क्लोज हुआ था वहां वहीं पे क्लोज हुआ है। सी कल कितने पे क्लोज हुआ था? 35,620, और आज वहीं पे घूम रहा है। अरे इट हैज क्रॉस दिस टाइम, वेट, अभी भी ट्राई तो चालू ही है। अब ये ₹2 वाला ₹8 तक पहुंचा है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है धीरे धीरे। अगर और 700 क्रॉस किया तो मजा आएगा। 700 को क्रॉस करना जरूरी है, तब तक वो आउट ऑफ मनी है, इसलिए तभी वो इन द मनी होगा। इन द मनी हुआ तो इट विल फायर। वी आर वेटिंग इट, लेट्स सी। इसका देखा 140 150 तक पहुंच गया। ये कितना हो गया था अभी? 60 हो गया था ना, 60 से अभी वापस 150। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट देन टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। हेजिंग वाला इज ओनली वर्किंग बेटर, वरना तो ऑप्शन में कैपिटल कब तक निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, पैसा ही साफ कर देते पूरा। चलो, वन कैंडल इज क्लोज्ड अबव दिस। नाउ लेट्स वेट कि रिटेस्ट करके ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। आज का हाई कितना बनाया है इसने पूरा दिन में? 676। अच्छा, कल के लिए आई विल सजेस्ट टू बाय कॉल ऑप्शन, क्योंकि ये पिछले लास्ट 15 मिनट्स में कुछ बाइंग आ रही है। तो कल जो भी मार्केट अगर चांसेस आर वेरी हाई, निफ्टी बैंक विल ओपन गैप अप। But at least from this level, this level I will say 35,594, it has traveled up to 35,674. तो अच्छा ट्रैवल हुआ है।
ये फिर टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, हाउ वेयर टू ट्रेड, विच स्ट्राइक प्राइसेस आप कर सकते हो, वो सब वहां पे आएगा। आई डोंट थिंक सो हो जाएगा। 8 रुपए से वापस वही है, 2 रुपए पे आ गया। जाने नहीं दे रहे हैं शायद ऊपर। बाकी सब टॉपिक्स में प्रिपरेशंस आर गुड नाउ। इनकी प्रिपरेशंस अच्छी थी, मतलब फाइनल लेवल 1 के बाद तो लेवल 2 लेवल 3, मतलब भले ही उनका इंटरव्यू या जो भी है वो मतलब दिस सिप ऑफ 9, ठीक है, बट दे एक्चुअली रियली परफॉर्म वेरी गुड। मतलब उसमें एक चीज अच्छा मुझे ये लगा कि जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। बाकी सबका तो चल ही रहा था। आई थिंक देयर आर 5 T1s, अराउंड 11 नहीं 7 के 8 लोग T2 है। You can just imagine around 13 to 14 are T1 T2s out of 20. What is the package offered to the T1s by tier 1 company? वो आया ना, वो एक बंदा तो था, वो बोल नहीं रहा था T3 में ही था। हाँ, तो he is now into T1, लेकिन वो प्रिपरेशन करना पड़ता है उस लेवल का। हाँ यस आदित्य, अक्षय सॉरी, या टेल मी। tier 1 का पैकेज रेंज क्या कोई है जिसे मिला? क्या क्या बोल रहे हो? tier 1 का किसी ने इंटरव्यू क्रैक किया? हाँ, this Kuldeep only. Kuldeep and Vishwesh both are in T1. एक्सा नो? एक्सा में, हाँ। Okay. बाकी तीनों की वैल्यूज देख रहे हो, 45 पैसा, 80 पैसा, 20 पैसा, almost zero. Now you have understood what is expiry, how the options are turning to ₹0, ठीक है। 20-25 पैसे में भी क्यों ट्रेड कर रहे हो? सी यहाँ पे है लास्ट वाला, बस यहाँ पे बस खत्म हो रहा है उसका, फिर भी ट्रेड। ये पता है कौन लोग है? ये जो बाइंग वाले हैं, यहाँ पे जो खरीद रहे हैं, यहाँ पे बाई नहीं कर रहे, वो अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। जिन्होंने 10 रुपए पे बेचा होगा, 20 रुपए पे बेचा होगा, 30 रुपए पे जो भी बेचा होगा। सी 71 से स्टार्ट किया था आज सुबह, 71 का 0 कर दिया है, करेक्ट। तो ऊपर से जो बेच बेच के आ रहे हैं, लास्ट तक वेट कर रहे हैं। क्लियर? मार्केट इज क्लोजिंग एट डे हाई। Yeah, and for the mocks you have to come in formals, ठीक है, just like a normal interview face to face वैसे ही होगा आपका conduct, and please make sure you work on your communication skills also, उसके भी marks है mocks में। So partially 50% score will be considered based on your like HR skills, and 50% will be considered on your domain knowledge. Yeah, this is the candle I wanted. उसको गिराओ भाई, तब जाके तो ये प्रीमियम गिरेगा ना मेरा कॉल ऑप्शन का। But these people can easily manipulate. You have already seen. ठीक है, कब ऊपर लेके जाना है, तो कब नीचे लाना है, ऐसा लगता है फिक्स मैच। बहुत हैवी वॉल्यूम होता है। बस इसके नीचे ला दो बस, दिस पॉइंट 35,600 के अंदर। आई वांट दैट टू गो इनसाइड।
ऑटो क्लोज तो हो ही जाएगा। हाँ? क्या बोल रहे हो? ऑटोमेटिकली क्लोज हो ही जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, 3:30 तक ये। तो 10 मिनट ही है तो हाँ चलो, यस वेरी गुड, एक और डाल दो। वो ब्लू लाइन तक टच कर दो ना तो भी अच्छा है अपने लिए। वो प्रीमियम तो खान मतलब वही है ना, प्रीमियम मीटिंग वी आर डूइंग इट। हमारी स्ट्रैटेजी आज भी सक्सेसफुल है। सेकंड टाइम ट्रैप हुआ है बुल्स, दो बार। ₹8 से वापस हो गया 60 पैसे। तो जिन्होंने मतलब वो ₹8 में थोड़ा बहुत भी शॉर्ट कवर किया होगा, दे आर इनटू लॉस। स्टॉक्स तब तक देखते हैं। Adanis are moving in their own way, ठीक है, नो वन इज वाचिंग देम। लेके रखा है तो ठीक है, नहीं लेके रखा है तो भी ठीक है। सी अपर सर्किट और लोअर सर्किट बोला था ना मैंने आपको। सी अपर सर्किट यहाँ पे है, देयर आर नो सेलर्स, ओनली बायर्स आर देयर, उसको अपर सर्किट बोलते हैं। और लोअर सर्किट में देयर विल बी ओनली सेलर्स एंड नो बायर्स। लोअर सर्किट में आज कौन सा स्टॉक है? स्टॉक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, ये समटाइम्स द कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन ऐड कर दिया हम लोगों ने, वो देखा था ना टांडला प्लेटफॉर्म्स के सीएल वगैरह में, तो मतलब उसमें तो बैक टू बैक अपर सर्किट्स, मतलब मौका ही नहीं मिलता है फिर रिटेलर्स को बाय करने का कुछ भी। और एक बार वो लोग लोअर सर्किट करना स्टार्ट कर दे तो लोअर सर्किट पे बैक टू बैक लोअर सर्किट्स। आई थिंक इसी में है, आई थिंक इन केएससीएल ओनली आई सी। इफ यू चेक द डेली चार्ट, एक दिन अपर सर्किट एक दिन लोअर सर्किट वही चल रहा है, देखो उसका। टुडे इट इज इन अपर सर्किट, ठीक है। अब देखो ये आपको क्या करोगे इसमें, ये इतना ऊपर लेके गए फिर इतना लोअर सर्किट, कोई चार्ट ही नहीं बन रहा है, दिख रहा है पूरा ऊपर उठा लिया, ये सब अपर सर्किट है। दिस ब्लैंक डॉट मींस देयर इज नो ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड, व्हाई देयर इज नो सेलर्स एंड हेंस बायर्स आर देयर, बट कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे जाके इन लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया किसी ने, तो बैक टू बैक सेलिंग, नो बायर्स, करेक्ट। 130 से लेकर कहां तक लेके आए इसको, ₹55 पर लेके आ गए वापस, आधा कर दिया, ठीक है। अब वापस से अपर सर्किट चालू किया है तो 55 से वापस ₹80। देखो देयर विल बी ओनली बायर्स, नो सेलर्स। ये नहीं पता चलता है कि कौन कब कहाँ पे, लेकिन अच्छे अगर फंडामेंटल क्वालिटी स्टॉक्स अगर अच्छा है तो दे विल बी परफॉर्मिंग गुड। लेकिन हर एक का टाइम आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब रैंडमली कुछ भी कहीं पे भागे जा रहा है। Okay, any other doubts otherwise in this level 1? Please ensure try everyone for T1, ठीक है, सबको ट्राई करना है T1 T2 के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखना, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से नाउ। और नहीं सबका एक साथ ही सैटरडे, एवरीवन बैक टू बैक, मतलब जैसे पहला टर्न आपका है, दूसरा इनका है, तीसरा इनका है, जैसे इनका खत्म हुआ इनका आ गया, ऐसे चलता है। तो सब लोग ऑफलाइन में जितने भी लोग हैं तो सबको यहीं पे आके देना है, ऑनलाइन मतलब जो मतलब अटेंड कर रहे हैं उनका ऑनलाइन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफलाइन सबका खत्म होगा, उसके बाद ऑनलाइन का है। वो फिर आपका वो शेड्यूल आ जाएगा स्लॉट वाइज, जैसे आपका 9 बजे स्टार्ट होता है तो इनका 9:20 को स्टार्ट होगा, इनका साढ़े मतलब 9:45, आपका 10 बजे, तो स्लॉट्स विल बी एलोकेटेड टू एवरीवन। ऑन एन एवरेज इट विल बी बिटवीन लाइक 15 to 20 minutes या मैक्स 30 minutes, नॉट मोर देन दैट।
लेवल 1 मोस्टली आई विल बी टेकिंग मोस्टली, लेवल 2 बाहर के, क्योंकि एक बार फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आपका तोड़ना होता है। लेवल 3 मोस्टली आई विल बी टेकिंग, इफ आई एम नॉट अवेलेबल देन कोई और होगा। इसमें या कंबाइंड लेवल 1 एंड लेवल 2, क्योंकि वो फैकल्टी ऐसे थे कि उन्होंने पूछ लिया, प्लान नहीं था, तो फिर इट्स अनएक्सपेक्टेड कि वो लेवल 1 का पूछते हैं कि नहीं। बट सी नाउ योर प्रिपरेशन हैज टू बी सच दैट कि आपको लेवल 1 का आना ही चाहिए अब तो, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह अगर वो रट्टा नहीं मारा दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट, इतना तो पता होना चाहिए। फिर लेवल 1 करके नहीं जा रहे, इंटरव्यू में तो नहीं बोल सकते ना कि लेवल 1 मैं सिर्फ करके आया हूँ या लेवल 2 का ही टॉपिक मुझे आता है। आपने तो आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन पूछा है, उनको ऐसे पूछा था जनरल। ऑफ कोर्स वो तो फिर जब तक आपका जॉब नहीं होता है तब तक चले के साथ में चल रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जॉब में थोड़ा, जॉब के इंटरव्यू में ऐसा थोड़ी होगा कि लेवल 1 का पूछ रहे लेवल 2 का नहीं पूछ रहे। और वहां पे तो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड और आपका एक्सपीरियंस के क्वेश्चन सब कुछ आएगा। जिनका वर्क एक्सपीरियंस है उनके वर्क एक्सपीरियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस। यस, तो उसको वही था, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग तक पूछ लिया। अब अकाउंटिंग का तो कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है सिबॉप में, ठीक है। तो फिर वो तो डिग्री से ही लेंगे, आपको पकड़ लेंगे, या तो फिर वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से। What is the most challenging situation that you have faced in your work experience? मतलब वर्क प्लेस सिचुएशन कैसे रिजॉल्व किया, कौन कौन से मतलब अप्रोचेस आपने लिए थे, तो सब कुछ पूछा जा सकता है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार 80 लोगों का एक दिन में इंटरव्यू ले रहा है और आपका टर्न शाम को आया, तो फिर समझ लो कि वो ऑलरेडी थका हुआ है एंड ही इज नॉट इन एनी पोजिशंस टू हेल्प यू, ठीक है। वो आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ के खत्म कर देगा, तो फिर आपका परफॉर्मेंस वो ओनली ऑन द बेस ऑफ 3 क्वेश्चंस विल बी जज्ड। और जो सुबह का गया है उसका पहला ही टर्न था, तो उसका आधा घंटा तक चला है, उसको पूछे गए था कुछ 15-20 क्वेश्चंस, तो ही विल बी जस्ट बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड टू हिम। तो दोनों केस सिनेरियोस आर एप्लीकेबल। किसके? अमेरिकन, उनके ऑप्शन। बट अमेरिकन ऑप्शंस आर डिफरेंट, तो बेटर डोंट गो फॉर, ओनली स्टडी अवर इंडियन ऑप्शंस। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे भी मॉक्स और इंटरव्यूज में पूछा जाएगा तो इंडियन ऑप्शन से पूछा जाएगा, नॉट हाँ नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उनकी वे ऑफ स्टाइलिंग ऑफ ऑप्शंस इज कंप्लीटली डिफरेंट, expiries are also different and their rules and regulations are also different. Following European style, but again our options are completely traded in different way. तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आज आप इतना ही समझो, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ मनी क्या होता है, कॉल स्प्रेड कैसे क्रिएट करते हो, ये बियर स्प्रेड कैसे क्रिएट करते हो, या पुट स्प्रेड कैसे क्रिएट करते हो, पूरा हेजिंग चारों को मिला के कैसे करते हो, फिर कौन सा जीरो होगा कौन सा जीरो नहीं होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, किसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है किसकी नहीं है, टाइम वैल्यू कैसे जीरो होता है। बस ये सब क्वेश्चंस आर बेसिक क्वेश्चंस, इतना तो पता ही होना चाहिए। देन यू कैन गिव एनी एग्जांपल, कोई भी स्टॉक का बोल दो, कोई भी इंडेक्स का बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई भी प्राइस के साथ, अगर आपने बोला ना कि बैंक निफ्टी 1000 पे चल रहा है तो चलेगा, बट डिफाइन योर स्ट्राइक प्राइस इज देन अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन वो आपको पता नहीं रहता है कि किसकी स्ट्राइक प्राइस कौन कौन सी है, तो इसलिए फिर आपको थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वाज रिकमेंडेड बाय सिबॉप 9 कि मार्केट का नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हैज टू बी देयर अलोंग विद द थियोरेटिकल डोमेन नॉलेज, ठीक है। ये तो 05 पे आ गए, लास्ट वाला लॉट, 2 मिनट बचा है, 5 पैसे भी नहीं छोड़ने हैं, मतलब ये भी ले लो। So finally, if we are going with this prices, 114 कितना प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम, 130 इसका था, 160 और 30 इसका था। So in that case 160 हमने ऑलरेडी सेल किया हुआ है, और 20 + 7 27 - 160, so नहीं सॉरी 160 - 113 I have made 47 - 27 20 rupees।
मतलब 500 से 1000, 500 से 600 700 रुपए के बीच में ही है। वो कम हो गया एक्चुअली, दैट 600 के ऊपर चल रहा है ना मार्केट, इसलिए। लेकिन अभी भी वो 13 रुपीज का है। 1 मिनट में जो करना है कर लो, ऊपर तो नहीं जाएगा डेफिनेटली। बाकी सब 0 हो गए, ठीक है। 0.5 के नीचे नहीं जाते हैं, मिनिमम प्राइस है 0.5, प्योर 0 नहीं होता है, ठीक है। So understood now options clearly. Please practice now little bit even after your level 1 mocks are completed. इससे प्रैक्टिस करना लाइव मार्केट्स के साथ, मतलब रियल ट्रेडिंग नहीं, ऑप्स्ट्रा में जाके स्ट्रेटेजी डाल दो। एंड यू कैन टेक एनी प्राइसेस, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि वो प्राइसेस कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि आपको स्ट्राइक प्राइसेस कैसे सिलेक्ट करते हैं वो नहीं पता है अभी, इसलिए। एनीथिंग अदर देन दिस? ओके, क्लोजिंग द सेशन देन, ठीक है। ओके, वो सेटल हो जाता है अभी भी 10-15 मिनट, देन इट टेक्स फॉर द सेटलमेंट। ये जो कुछ ने बेचा है, किसी ने नहीं बेचा, वो डेटा रहता है। किसी ने लास्ट में 10-15 सेकंड के टाइम पे सब कुछ बेच दिया होता है, लेकिन वो हमको नहीं पता रहता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट सो फार, एनी अदर देन दिस? अक्षय, मिताली? ओके, ओके देन क्लोजिंग द सेशन, ठीक है। चलो, कुछ हेल्प हुआ आज का सेशन का कि? एक्चुअली ये मुझे नहीं मिल रहा था सैटरडे संडे को, वरना बहुत इजी होता आपके लिए ऑप्शंस का देखना समझना।